So, a very good evening and a warm welcome to all our attendees present over here today. Welcome to the T Square Power Session Turbocharge Your Tally with TDS and Shortcuts. We are thrilled to have you join us today for this insightful and practical learning experience brought to you by AimTech Business Solutions Private Limited, your trusted Tally certified partner. Over the next 60 minutes, we will be diving into some powerful topics: TDS setup and reporting using Tally Prime, essential Tally shortcuts to boost our productivity, and an exciting look at what's new in Tally Prime 7.0. Whether you are a seasoned user or just getting started, today's session is designed to help you work smarter, faster, and more efficiently. So, thank you for being here. Let's get started and make this session truly empowering. I'll just share my screen. I want a confirmation from any one of you that the screen is visible to all of you. We have something in the chat. Okay, good evening. Yes, good evening, Pushpendra sir. Yeah, I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. We'll just open a Tally screen so that I can get a confirmation. Okay, thank you so much for your active responses. So we are good to go. अभी आप सभी को फ्लो तो पता है. We are going to have 3 things. Thank you so much for your response. यही response end तक बना के रखिए. So session will look like something we are learning into it. Okay? Now we have 3 things which we are going to discuss. जैसे कि आप लोगों ने flyer go through किया होगा या फिर you might have received some messages from our side जिसमें हमने mention किया है that we are going to have a look over 3 things. What are the 3 things? One is TDS, one is Tally shortcuts, and the one which is very important and जो आपको बहुत eager करके curiosity generate करके यहाँ पे लेके आया है, that is 7.0. And I'm very sure, I'm pretty sure जब मैं आपको 7.0 के features बताऊंगी, you people are going to tell me कि हमें आज ही आप 7.0 install करके दीजिए हमारे end पे. And we are surely going to do that. That's not a problem. तो अलग थे रखा है. I request all the participants to please keep themselves muted till the time you do not have any query which is to be shared. Yeah. So we are going to begin with TDS. Okay? I'll show all the configurations, necessary configurations जो आपको करने हैं Tally में. और इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इन बिटवीन तो आप लोग चैट पे लिख दीजिए. जैसे ही मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है आई विल श्योरली गो बैक टू ऑल द चैट एंड आंसर योर क्वेरीज. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अगर स्क्रैच से, हमने अभी तक टीडीएस इंप्लीमेंट ही नहीं किया है. फ्रॉम स्क्रैच इफ यू वांट टू बिगिन, तो टीडीएस कैसे एनेबल होगा, व्हाट आर द नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस, सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आप अपने नोटपैड्स अपने साथ रेडी रखिए. Whichever thing you feel like is to be noted, kindly do the same at that point of time only. सबसे पहले TDS एक्टिवेट करने के लिए you people have to go to F11. Yes, F11 में आना है. यहाँ पे you are getting an option of enable TDS. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने enable TDS पे अपना कर्सर रखा हुआ है. इसको यस करने के बाद में एक डिटेल्स की स्क्रीन आती है वेर यू आर प्रोवाइडिंग योर कंपनी डिटेल्स. आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है और जो भी पर्सन ये चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं. ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स इफ यू वांट टू एक्टिवेट टीडीएस ऑन स्टॉक आइटम्स, मान लीजिए अगर आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं इंस्टेड ऑफ लेजर, तो आप एक्टिवेट करना चाहते हैं स्टॉक आइटम के लिए भी टीडीएस को, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं. ठीक है, ये कंपनी लेवल पे जो कॉन्फ़िगरेशंस हमें करने होते हैं वो हमने किए हैं. इसे कंट्रोल ए करके हम सेव कर रहे हैं. अब हम प्रोसीड करते हैं कि हमने कंपनी लेवल पे कंपनी को डिफाइन तो कर दिया है कि इसमें टीडीएस की वर्किंग होने वाली है. अब बात करते हैं नेचर ऑफ पेमेंट्स की, टीडीएस के लेजर्स की और हमारे पार्टी लेजर्स की. एक एक चीज को इन डिटेल समझते हैं. पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ पेमेंट.
आप जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट प्रिपेयर करते हैं, मान लीजिए अगर आप प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो यू आर हैविंग अ नेचर ऑफ पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फीस. Here you get the column to prepare your TDS nature of payments. यहां से आपको एक एक TDS का nature of payment बनाना है. Now suppose कीजिए कि I do not know what is the name for commission का TDS nature of payment. तो मैं क्या करूंगी, आपको जो नाम आता है वो नाम आपको नहीं देना है. यहाँ पे Tally has also provided you with an helper. If you are not aware, इसी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में आप चेक कीजिए, Alt H का एक ऑप्शन है. Alt H इसका शॉर्टकट है और ये हेल्पर है. यहाँ पे यू जस्ट गिव द नेम ऑफ द सेक्शन एंड यू विल गेट इट्स प्रॉपर नेम, इट्स ऑफिशियल नेम एंड द सेक्शन एट द राइट. यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए. सिलेक्ट करने के बाद जो भी परसेंटेज यू फील इज टू बी डिफाइंड ओवर देयर, गिव इट ओवर देयर. अगर आपको विदाउट पैन परसेंटेज भी मेंशन करना है तो F12 कीजिए. यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अलाउ टैक्स रेट विदाउट पैन, इसे यस कीजिए. कंट्रोल ए से सेव कीजिए एंड कम हियर एंड गिव द परसेंटेज फॉर विदाउट पैन. थ्रेशहोल्ड लिमिट अगर आपको देनी है कि टीडीएस शुड बी चार्ज्ड ओनली इफ द इनवॉइस अमाउंट इज एक्सीडिंग 50,000, तो यहाँ पे आप 50,000 एग्जेम्पशन लिमिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं ये हम नेचर ऑफ पेमेंट लेवल पे कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यू आर हैविंग एन ऑप्शन ऑफ हेल्पर. Alt H, हेल्पर से नाम और सेक्शन सिलेक्ट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली परसेंटेज डिफाइन कीजिए. एग्जेम्पशन लिमिट इफ यू विश टू डिफाइन यू कैन डू इट. ओके, इसके साथ साथ बात करते हैं कि इन केस इफ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस थिंग एट योर साइड, मान लीजिए आपने नेचर ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, यू हैव मेंशन्ड प्रॉपर परसेंटेज, देन टू यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज इनटू कैलकुलेशन ऑफ द टीडीएस. बहुत सारी जगह पे ये भी प्रॉब्लम फेस होती है. उसका रीजन सिर्फ यही है कि कंट्रोल आई में जो टीडीएस की हिस्ट्री है वहां पे अगर आपने मल्टीपल हिस्ट्रीज दी हुई है, मान लीजिए 1 अप्रैल 24 से द रेट वाज 10%, बट देन कमिंग टू 1 अप्रैल 25 वो रेट 5% हो गया या 2% हो गया या 20% हो गया, वट एवर द रेट बिकम्स. अगर आपने वो चेंजेस किए हैं और आपने इफेक्टिव डेट प्रॉपर नहीं दिया है तो आपको अमाउंट कैलकुलेशन में डिफरेंसेस आ सकते हैं. सो अगर ऐसा कोई इशू आप फेस कर रहे हैं तो यू हैव टू चेक योर टीडीएस हिस्ट्री. वो चेक होगा इनटू कंट्रोल आई. प्रेस कंट्रोल आई ऑन दिस स्क्रीन. यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट वाले स्क्रीन पे कम ओवर हियर, प्रेस कंट्रोल आई. यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाती है. आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि कौन सी डेट से आपने क्या परसेंटेजेस डिफाइन किए हुए हैं. इफ यू विश टू मेक एनी चेंजेस यू कैन डू इट ओवर हियर एज वेल. ओके, कंट्रोल ए से ये सारी सेटिंग्स सेव होती है एंड देन इसी तरह से आप अपने सारे नेचर ऑफ पेमेंट्स बना लेंगे. सो अभी तक हमने जो बात की, हमने पहले कंपनी लेवल पे टीडीएस कॉन्फ़िगर किया, दैट इज F11 में, कंपनी फीचर्स में, एंड देन वी क्रिएटेड नेचर ऑफ पेमेंट. स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव फॉरवर्ड. तो अब हम बनाएंगे टीडीएस के लेजर्स. टीडीएस के लेजर यानी टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टीडीएस ऑन कमीशन, ऐसे जो लेजर्स आप बनाते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ. यहाँ पे आके हम हमारे लेजर्स को चेक करते हैं. वी हैव प्रिपेयर्ड टीडीएस ऑन कमीशन. ठीक है, इस पे एंटर कीजिए. यहाँ पे मैंडेटरीली आपको ध्यान रखना है कि आपने जो अंडर ग्रुपिंग सिलेक्ट की है दैट शुड बी ड्यूटीज एंड टैक्सेस. फॉर योर टीडीएस लेजर इट शुड बी ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई और ग्रुप आपने सिलेक्ट किया हो बट दैट ग्रुप इज केप्ट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने मान लीजिए टीडीएस का ही एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया है, यू कैन क्रिएट ग्रुप ओवर हियर बाय डूइंग Alt C. Alt C जब आप करते हैं तो एक न्यू ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो जाता है. बट वो जो न्यू ग्रुप आपने क्रिएट किया है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का सब ग्रुप होना चाहिए. जैसे यहाँ पे यू कैन सी ड्यूटीज एंड टैक्सेस किसके अंदर काउंट हो रहा है, करंट लायबिलिटीज के अंदर. सेम तरीके से आपका जो भी ग्रुप आप बनाते हैं, मे इट बी टीडीएस और सम अदर नेम, दैट इज फाइन, बट उसका जो अंडर ग्रुपिंग है, वो जो सब ग्रुप है, वो सब ग्रुप हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ही होना चाहिए. ओके, कमिंग फॉरवर्ड, टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में आपको सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मिल जाता है वेदर इट इज जीएसटी और टीडीएस. प्रॉपरली यू हैव टू कॉन्फ़िगर टीडीएस ओवर हियर.
only then it will understand that this ledger is for TDS and here we are supposed to get this much of amount auto calculated. ठीक है. TDS सिलेक्शन के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट पूछा जा रहा है. सो आप यहाँ पे एनी भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक नाम है नेचर ऑफ पेमेंट का वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. एनी रखने से जो भी परसेंटेज आपने डिफाइन किया होगा वो परसेंट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है एंड आपको रिजल्ट मिल जाता है इनटू योर इनवॉइस. तो फिलहाल के लिए हमने एनी रखा है. अब आपको ये नेचर ऑफ पेमेंट स्पेसिफिक कब सिलेक्ट करना है वो हम इनवॉइस में देखेंगे. जब वी आर पासिंग सम टीडीएस एंट्रीज दैट टाइम विल बी हैविंग अ लुक ओवर इट. ओके, ये हमने क्रिएट किया टीडीएस का लेजर. नाउ कमिंग टू द कॉन्फ़िगरेशंस, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस, some of your current asset ledgers are there for TDS, like TDS is deductible on such kind of ledgers also. अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो some of our clients are having this thing at their place that उनका जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का लेजर है उसका अंडर ग्रुपिंग तो करंट एसेट्स है बट उस पे TDS डिडक्टिबल है प्रीपेड एक्सपेंसेस पे भी. सो व्हाट कैन यू डू एट दैट टाइम, अगर आपकी कोई भी करंट एसेट की लेजर ऐसी है जिसपे TDS डिडक्टिबल है, सो यू हैव टू डू दिस कॉन्फ़िगरेशन एट दैट प्लेस. आप नोट कर सकते हैं उसका ग्रुपिंग अंडर करंट एसेट्स होना चाहिए. कमिंग फॉरवर्ड, TDS डिडक्टेबल का ऑप्शन यस होना चाहिए एंड ट्रीट एज TDS एक्सपेंसेस, ये ऑप्शन को यस करना है बिकॉज ये जो एक्सपेंसेस है इसको आप TDS के एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो दिस ऑप्शन शुड बी अ यस ओवर हियर और नेचर ऑफ पेमेंट इज टू बी सिलेक्टेड एनी. ठीक है, और इसे आप कंट्रोल A करके सेव कर देंगे. अभी तक हम लेजर क्रिएशन की ही बात कर रहे हैं, अभी भी हम लेजर क्रिएशन पे ही बात करने वाले हैं बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू हैव अ टॉक ऑन पार्टी लेजर. ओके, सो मैं कोई भी एक पार्टी लेजर ओपन कर लेती हूँ. लेट्स सपोज हम साई निवास ले लेते हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय पार्टी लेजर. यहाँ पे पार्टी लेजर में जो कॉन्फ़िगरेशंस आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस होना चाहिए because you are going to select the against reference and new reference into your invoices. जब आप TDS के लिए एंट्रीज बुक कर रहे हैं at that point of time अगर आपने एडवांस एंट्रीज की है तो आप वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस में वो पर्टिकुलर पेमेंट का वाउचर सिलेक्ट करते हैं. सो ये सारे सिलेक्शन एंड डी सिलेक्शन के लिए आपका मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल शुड बी अ यस. क्रेडिट पीरियड इफ यू विश टू गिव इट ओवर हियर यू कैन, इफ यू डू नॉट यू कैन कीप इट ब्लैंक. ठीक है, While proceeding further, is TDS deductible? ये ऑप्शन आपका yes होना कंपलसरी है. तभी वो पर्टिकुलर पार्टी के लिए TDS, मतलब जब आप पर्टिकुलर पार्टी सिलेक्ट करते हैं तो वो TDS का जो लेजर आप लेने वाले हैं उस पे वो ऑटो कैलकुलेट करेगा अमाउंट को. ठीक है, यू हैव टू प्रेस अ yes over here. Then you have to select the deductee type. Deductee, whether it is a company, whether it is an individual, whether वो resident है, non resident है, firm है, HUF है, जो भी है you are supposed to select it over here. ठीक है, इसके बाद में डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर. इफ यू विश की जो हम परचेज का या एक्सपेंस का एंट्री कर रहे हैं उसी के अंदर TDS डिडक्ट होना चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे. सो दैट जैसे ही आपने GST चार्ज किया, GST के नीचे व्हेन यू आर टेकिंग TDS का लेजर दैट टाइम इट शुड कैलकुलेट द अमाउंट इन द सेम वाउचर. ओके, अब मैं अगर आप अपने स्क्रीन पे ये सेम चीज ट्राई कर रहे हैं या इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग TDS फॉर द फर्स्ट टाइम, हो सकता है आपको स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर ये तीन ऑप्शंस ही मिले. दैट इज एक सेकेंड, हाँ, दैट इज दिस 1, 2 एंड 3. हो सकता है जो एडवांस एंट्रीज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मे नॉट बी विजिबल टू यू. तो क्या करना है, F12 में एक सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है, हियर इट इज अलाउ एडवांस एंट्रीज इन TDS मास्टर. इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है. अभी हम बात करने वाले हैं कि ये ऑप्शन हमने यस क्यों किया है, व्हाट एडवांस फीचर्स आर वी गेटिंग ओवर हियर. बट इफ यू आर नॉट अवेयर कि एडवांस की एंट्री अगर आपको, मतलब एडवांस TDS कॉन्फ़िगरेशंस अगर आपको करने हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग एन ऑप्शन इनटू योर लेजर, तो इस ऑप्शन से आप इसको एनेबल करेंगे. ये हमने F12 में किया है. लेजर के स्क्रीन पे ही F12 करने पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा. कमिंग बैक टू द स्क्रीन अगेन, अब बात करते हैं ये ऑप्शन से होगा क्या. You might be having some parties at your place who are a LDC holder, like they are eligible for lower deduction. So जब आपको lower deduction का percentage define करना है, at that point of time आपको इस ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी.
यू हैव टू प्रेस अ येस ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑल्टर जीरो और लोअर डिडक्शन का। यस, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑल्टर जीरो और लोअर डिडक्शन का। इसको आप यस करेंगे। यस करने के बाद जो भी पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट ये पर्टिकुलर पार्टी के साथ आपका होता है ट्रांजैक्शन में, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मे इट बी कमीशन, मे इट बी प्रोफेशनल फीस, दैट इज नॉट अ कंसर्न, यू कैन सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ देम। सिलेक्ट करना है। अगर जीरो रेट है तो यू हैव टू गो फॉर जीरो रेट। इफ इट इज अ लोअर डिडक्शन, टेक लोअर डिडक्शन। Press give the certificate number, give the applicable from and to dates and the percentage. I'll just take one ledger in which I have already configured the thing. Here it is. Okay, आनंद राठी में हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर डिडक्शन में वी हैव सिलेक्टेड कि हम प्रोफेशनल फीस पे 197 प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ये इनका सर्टिफिकेट नंबर है, दिस इज द एप्लीकेबल रेट एंड दिस इज देयर परसेंटेज। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 5%। अब लोअर डिडक्शन में क्या होता है, इफ यू हैव मेंशनड 5% ओवर हियर, तो आपके नेचर ऑफ पेमेंट में 10% हो, 20% हो या कोई भी परसेंटेज हो, मैटर नहीं करता है। इट विल ऑलवेज कंसिडर 5% फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टी। ओके, ये चीजें स्पेसिफाई करके एंड ऑफ लिस्ट करके यू हैव टू सेव द लेजर। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लेजर में ध्यान रखनी है, दैट इज द पैन नंबर। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर देयर कि फॉर ETDS योर पैन इज अ मैंडेटरी थिंग व्हिच यू आर सपोज टू मेंशन। ठीक है, सो पैन आपको मैंडेटरीली मेंशन करना है एंड आप कंट्रोल ए करके लेजर को सेव कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशंस हमने किए पार्टी मास्टर लेवल पे। ठीक है, अभी हम एक रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। फर्स्ट वी इम्प्लीमेंटेड TDS इनटू कंपनी लेवल F11 पे, देन वी प्रिपेयर्ड, वी क्रिएटेड नेचर ऑफ पेमेंट, देन वी क्रिएटेड आवर TDS लेजर्स जो हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखा है, और उसमें TDS नेचर ऑफ पेमेंट में हमने एनी सिलेक्ट किया है। फिर हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे करंट एसेट्स वाली लेजर्स बनाई, उसमें हमने TDS की एप्लीकेबिलिटी को समझा है। कमिंग फॉरवर्ड, हमने पार्टी मास्टर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसमें TDS कैसे एप्लीकेबल करना है एंड व्हाट ऑल नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस आर टू बी डन, वो हमने अभी तक देख लिया है। इन केस अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप चैट में डालिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे ही मुझे चैट पे कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, आई कम बैक टू द क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, ये हमने TDS की कॉन्फ़िगरेशंस कर ली, तो अब हम थोड़ा सा एंट्री लेवल पे जाते हैं, क्योंकि हमें एंट्रीज एंड रिपोर्ट्स सब कुछ देखना है, राइट। सो कम टू दी वाउचर्स। यहाँ पे हम एंट्री बुक कर रहे हैं। हम ले लेते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर, लेट इट बी ब्लैंक, कीप इट एज टेस्ट। ठीक है, हमने 5 नवंबर ले लिया है। यहाँ पे हम सिलेक्टिंग अ पार्टी, रिलायंस लिमिटेड ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आई टुक प्रोफेशनल फीस, कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट आपने ले लिया। आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रही हूँ। आपने एक लेजर डिफाइन करने के बाद में आपको ये ऑप्शन आएगा कि TDS का नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे स्पेस बार करने से जितनी भी नेचर ऑफ पेमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं उसकी एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करना है जो सेक्शन के अंडर आप ये डिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, देन इफ यू विश टू चार्ज GST, तो आप GST की लेजर ले लेंगे यहाँ पे एंड योर TDS लेजर। अब हम ले रहे हैं TDS ऑन प्रोफेशनल फीस ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं TDS का अमाउंट जो है वो ऑटो कैलकुलेट हुआ है। ये ऑटो कैलकुलेट कहाँ से हुआ, जो प्रोफेशनल फीस में हमने परसेंटेज डिफाइन किए थे 10%, 15%, 20%, वो परसेंटेजेस पे से ये अमाउंट डिडक्ट हुआ है। ओके, ये हमने एकदम नॉर्मल एंट्री पास की है जिसमें कोई भी एडवांस ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एकदम बेसिक एंट्री। TDS बुक करने की जो एकदम बेसिक एंट्री होती है वो हमने यहाँ पे पास की है। आप देख सकते हैं TDS ऑटो कैलकुलेटेड है, जस्ट लाइक GST भी ऑटो कैलकुलेटेड है एंड TDS भी ऑटो कैलकुलेटेड है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एंट्री लेवल पे भी एडवांस जाते हैं। ये हमने एकदम बेसिक नॉर्मल एंट्री पास की है।
Now I'm coming, taking you all to some entries which are a level above. जो हमने अभी किया उससे एक लेवल ऊपर. The entries are for 2 April. Okay. 2 April 24. Yeah. हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने कुछ एंट्रीज की हुई है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे आप देखिए, मैंने पहले पेमेंट की एंट्री की है. ठीक है, यहाँ पे पेमेंट में हमने ले लिया साई निवास मेगा रेजिडेंसी का, हमने 85,000 का पेमेंट एंट्री कर दिया है, एडवांस रिसीव्ड फॉर टीडीएस. ठीक है, अब इसका जब आप परचेज एंट्री बुक करते हैं, लाइक पहले पेमेंट रिसीव हो जाता है, देन कमिंग टू दी परचेज एंट्री जब आप करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब मैंने इसमें क्या किया था, सिर्फ एडवांस रिसीव किया था. यहाँ पे जो केस है वो ऐसा है कि पेमेंट के टाइम पे I have just taken the amount. I haven't deducted TDS at the time of payment. I have deducted TDS while making my purchase invoice. इसका वाइस वर्सा केस भी हम लेने वाले हैं, बट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हमने ये केस रखा है कि हमारा पेमेंट पहले आ गया है, बट टीडीएस जो है वो हम इनवॉइस में बुक कर रहे हैं, परचेज इनवॉइस में बुक कर रहे हैं. तो उसके लिए तो नॉर्मल एंट्री चलेगी, आपने अपना पेमेंट का एंट्री पास कर दिया है अपने बैंक का अकाउंट लेके, एंड योर पार्टी को आपने क्रेडिट करते हुए एंट्री पास कर दिया है. देन आपने सेम उसका परचेज एंट्री भी पास किया, जहां पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस प्रॉपर सिलेक्ट करना है. ये देखिए, यहाँ पे आई हैव टेकन साई निवास अगेन, आई हैव टेकन द पर्टिकुलर लेजर जिसपे हम टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं. देन I have taken GST, I have taken TDS. आप देख सकते हैं, it is going to be auto calculated. Just a moment. Contract of agency है, payment to contractors. This way it is going to auto calculate the TDS. यहाँ पे हमने अगेंस्ट रेफरेंस में वो 85,000 का बिल ले लिया है, एंड न्यू रेफरेंस पे हमने जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे एक एंट्री बुक हो जाएगी. करेक्ट? यस, दिस फ्लो में आप एंट्री को सेव करेंगे. अब ये कौन सा केस था जहां पे आपने पेमेंट लिया है बट टीडीएस आपके परचेज इनवॉइस में ही बुक हुआ है. अब ऐसा भी हो सकता है व्हेन यू आर टेकिंग एन एडवांस फ्रॉम द पार्टी, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ओनली यू हैव बुक्ड द टीडीएस आल्सो. मैं एक वैसा केस भी आपको डिस्प्ले करती हूँ. लेट्स टेक 1 नवंबर से पीरियड ले लेते हैं, ऑल्ट F2, 1 नवंबर से 5 नवंबर. ओके, हाँ, यहाँ पे ये देखिए, ये जो रिलायंस लिमिटेड का पेमेंट है, व्हाट आई हैव डन इनटू दिस इज कि मैंने 15 लाख का एक एडवांस पेमेंट लिया है, wherein I have also booked the TDS for 15 lakh का amount. But when I am creating a purchase invoice, that time I have taken 20 lakh into consideration. तो जो बचा हुआ 5 lakhs है, उस पे TDS डिडक्ट करना है मुझे into purchase invoice, और जो ऑलरेडी 15 लाख का पेमेंट आया है उस पे मुझे TDS डिडक्ट करना है into my payment. I hope I am able to convey the transactional level का जो हमारा फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको समझा पा रही हूँ. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या किया है, वी हैव टेकन अ पेमेंट ऑफ 15 लाख. 15 लाख पे जो टीडीएस है वो हमने एडवांस पेमेंट जब ले रहे हैं तभी बुक कर दिया है इनटू द पेमेंट वाउचर ओनली. ओके, एंड देन जो एंट्री परचेज इनवॉइस का जो एंट्री मैं पास कर रही हूँ, दैट आई एम डूइंग ऑन टू 20 lakhs. और 20 लाख में जो बचा हुआ 5 लाख एडिशनल गया है उसका टीडीएस आई एम बुकिंग इनटू माय परचेज इनवॉइस. ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं पेमेंट में, आप देख सकते हैं आई हैव टेकन 15 लाख, उस पे मैंने टीडीएस का लेजर लिया है, तो ये 10% के हिसाब से. यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, कमीशन और ब्रोकरेज जो भी आपका पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट है सिलेक्ट करना है आपको प्रॉपरली, एंड इसको आपको सेव करना है. यहाँ पे मैंने 15 लाख का टीडीएस ऑलरेडी बुक कर लिया है. ठीक है, नाउ कमिंग टू परचेज. परचेज मैंने किया है 5 नवंबर को, एडवांस पेमेंट मुझे 1 नवंबर को आ गया था. 5 नवंबर पे आने के बाद में आप देख सकते हैं मैंने कमीशन एक्सपेंसेस बुक किया है 20 lakhs पे. ठीक है, अगेन आई सिलेक्टेड द नेचर ऑफ पेमेंट ओवर हियर, आई टुक जीएसटी, आई टुक टीडीएस का लेजर. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आपको ध्यान रखना है टीडीएस का लेजर लेने के बाद इज द स्क्रीन विच यू कैन सी राइट नाउ.
अगर आपको एडवांस सेटलमेंट करना है तो यहाँ पे इसके बाद में एक स्क्रीन आता है, व्हेन यू टेक दिस टीडीएस का लेजर इट विल आस्क यू कि डू यू वांट टू एडजस्ट अगेंस्ट द एडवांस व्हिच इज ऑलरेडी बुक्ड। वो ऑप्शन जब आप यस करते हैं एडजस्ट एडवांस एंट्रीज के अगेंस्ट, जब आप ऑप्शन को यस करेंगे तभी इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, वेर इन यू आर एबल टू सिलेक्ट अगेंस्ट रेफरेंस में पेमेंट का वो वाउचर टाइप जहां पे 15 लाख पे ऑलरेडी टीडीएस बुक्ड है। इसलिए आप देख सकते हैं 15 लाख की जो एंट्री है उसके सामने टीडीएस का अमाउंट नील आ रहा है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी बुक्ड इनटू दैट ट्रांजैक्शन। और जो न्यू रेफरेंस में आपने परचेज का इनवॉइस लिया है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द 15 एंड 20, जो 5 लाख आपने लिया है उस पे यहाँ पे 50,000 टीडीएस चार्ज हो रहा है, और अकॉर्डिंगली उतना ही यहाँ पे डिडक्शन के लिए आ रहा है। आई होप द एंट्री एंड द थिंग इज क्लियर टू यू। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आप चैट में डाल के रखिए, मैं एक बार ये टॉपिक कंप्लीट होते ही चैट्स पे गो थ्रू करने वाली हूँ, ठीक है। 50,000 हमने डिडक्ट कर दिया। अब फाइनल यहाँ पे आके कंप्लीट होगी व्हेन यू आर सिलेक्टिंग दी अगेंस्ट रेफरेंसेस। अब ध्यान रखिए, अगेंस्ट रेफरेंस में एक तो आपका पेमेंट वाला एंट्री आ जाएगा 15 लाख वाला, करेक्ट। सेकेंड विल बी योर टीडीएस का अमाउंट, मतलब इस पर्टिकुलर बिल में जो टीडीएस आपने 50,000 डिडक्ट किया है उसका एक अलग रेफरेंस बनेगा जो आपको चालान रिको में शो होने वाला है, जहां से आप चालान रिकंसिलिएशन करने वाले हैं, ठीक है। देन एक और रेफरेंस क्रिएट होगा फॉर द डिफरेंस, मतलब 15 लाख आपने निकाल दिया, 50,000 जो टीडीएस बुक हो रहा है वो भी आपने निकाल दिया, तो रेस्ट इनवॉइस का अमाउंट जितना भी ऊपर जा रहा है दैट इज 5 लाख इनटू योर एक्सपेंसेस एंड द जीएसटी, वो चीजों को ऐड करके 5 लाख एंड 3,60,000 ऑफ जीएसटी, दोस थिंग्स आर एडेड एंड 8,60,000 का एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा, करेक्ट। और इस तरह से आपकी एंट्री जाकर के सेटल होगी। ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है जहां पे पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द एक्यूरेट टीडीएस, ठीक है। सो अगर हमने जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस को अभी तक डिस्कस किया है वो आपने प्रॉपर करके रखे हुए हैं एट योर एंड, तो आपको नो डाउट टीडीएस प्रॉपर ही आने वाला है, जो अमाउंट आएगा वो ऑटो डिडक्ट वाला प्रॉपर ही आएगा। इन केस अगर आपको उसके रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो एट द एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर आवर सपोर्ट नंबर्स, जहां पे यू कैन गेट बैक टू अस एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग दी रेलेवेंट सॉल्यूशंस टू यू, ओके। सो अभी हमने एक नॉर्मल एंट्री को भी देख लिया और एडवांस लेवल पे दो तरह की एंट्रीज को देख लिया, वेरिन हम टीडीएस एक बार परचेज इनवॉइस में बुक करते हैं एंड एक बार वी आर बुकिंग इट इनटू पेमेंट का इनवॉइस जहां पे हम एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब लोअर डिडक्शन की भी एक एंट्री देख लेते हैं। आई ब्रिंग यू टू 424 अगेन। यहाँ पे आनंद राठी, इफ यू रिमेंबर वी डिड सम कॉन्फ़िगरेशंस इनटू दिस लेजर, हमने लोअर डिडक्शन का 5% यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ था। सो यहाँ पे आते हैं, लेट्स सी। अभी मैं आपको प्रोफेशनल फीस का जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो भी डिस्प्ले करती हूँ। सी दिस इज माय नेचर ऑफ पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फीस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव मेंशन 10%, अगर विद पैन है तो 10% डिडक्ट होना है, विदाउट पैन है तो 20% डिडक्ट होना है, करेक्ट। अब हम चेक कर लेते हैं आनंद राठी हैज द पैन और डजंट हैज इट। ये देखिए पैन दिया हुआ है तो इट शुड डिडक्ट 10%, करेक्ट। बट सिंस वी हैव ऑलरेडी गिवन लोअर डिडक्शन का 5% ओवर देयर, उसके अंदर लेजर के अंदर वी हैव स्पेसिफाइड कि दिस इज अ लोअर डिडक्शन पार्टी, तो आपको जो है यहाँ पे अमाउंट विच यू आर गेटिंग इज गोइंग टू बी 5% ओनली। आप देख सकते हैं प्रोफेशनल फीस पे जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है दैट इज 5,000 नॉट 10,000। दिस इज बिकॉज we had selected lower deduction and we had defined the percentage for this particular vendor. I hope the concept of lower deduction, advance entries and a normal entry of TDS is clear to you all. ठीक है, अब हम चैट पे थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। We are having 3 things over here. पार्टी के लेजर के अंदर जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया वो रिपीट करिए मैम एक बार। ओके मैम, पार्टी के लेजर में ओके दैट इज द सेम थिंग राइट। पार्टी के लेजर में मतलब कौन सा वाला चाहिए मैडम? यू वांट मी टू रिपीट द लोअर डिडक्शन वाला पार्ट या जो नॉर्मल हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था दैट थिंग? 194 क्यू सेटिंग्स पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेरी राजेंद्र सर, इफ यू कुड इलैबोरेट प्लीज एक्सप्लेन लोअर डिडक्शन एंट्री अगेन। नो वरीज, लोअर डिडक्शन का पार्ट हम वापस ले लेते हैं और जानवी मैम ने बोला है कि पार्टी के लेजर के अंदर के कॉन्फ़िगरेशंस को दोबारा से रिपीट करें, तो वो पार्ट हम वापस ले लेते हैं।
सो जानवी मैम, आंसर टू योर क्वेरी इज कि ये हमारी पार्टी है। पार्टी पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस होना जरूरी है। अगर आपको अगेंस्ट रेफरेंसेस, न्यू रेफरेंसेस, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी है तो इफ यू वांट अ प्रॉपर कैलकुलेशन कि ये चीज यहाँ पे इतना पेमेंट आया था, उसके सामने इतना टीडीएस डिडक्ट हो गया है, दिस मच पार्ट इज येट टू बी डिडक्टेड, वो सारी चीजें इफ यू वांट प्रॉपर डिटेल्स, प्रॉपर रिपोर्ट, तो आपको सबसे पहले तो मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल का ऑप्शन यस रखना है। सेकंड, क्रेडिट डेज अगर आप देना चाहें आप दे सकते हैं, अदरवाइज इट इज फाइन। यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इस टीडीएस डिडक्टेबल का ऑप्शन आपका यस होना मैंडेटरी है, अगर आपको उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए टीडीएस डिडक्ट करना है तो। ठीक है, ये होने के बाद यू आर कमिंग टू डिडक्टी टाइप। उनका डिडक्टी टाइप क्या है, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल, फर्म है, एचयूएफ है, कंपनी है, रेसिडेंट है, जो भी है आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। आपको लिस्ट मिल जाती है, लिस्ट में से यू आर जस्ट अबाउट टू सिलेक्ट इट। उसके बाद अगर आपको सेम वाउचर में, यानी परचेज एंट्री जो आप कर रहे हैं, उसी परचेज एंट्री में इफ यू विश कि टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है कंपल्सरीली, तभी वो सेम वाउचर में टीडीएस डिडक्ट करेगा। ओके, और जो एडवांस एंट्रीज, सॉरी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, वो लोअर डिडक्शन का है। वो आई गेस यू आर अवेयर कि लोअर डिडक्शन यस करना है आपको, और जो भी नेचर ऑफ पेमेंट है वो डिफाइन करते हुए एप्लीकेबल फ्रॉम एंड टू पीरियड देना है एंड परसेंटेज डिफाइन करनी है। तो उस पर्टिकुलर वेंडर के लिए जो लोअर डिडक्शन रेट है वो ही एप्लीकेबल होगा, नॉट द रेट विच यू हैव डिफाइंड इनटू योर नेचर ऑफ पेमेंट। आई हैव आंसर्ड द क्वेरी विच जानवी मैम इज आस्क्ड, बराबर। देयर इज अमाउंट कॉलम इज नॉट अवेलेबल। नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेरी श्रुति मैम। वे टू एंटर अमाउंट नहीं मैडम, आपको परसेंटेज एंटर करना है। लोअर डिडक्शन की बात कर रहे हैं राइट, लोअर डिडक्शन में आपको परसेंटेज देना है, अमाउंट वो ऑटो कैलकुलेट करेंगे, टैली डज इट ऑटोमेटिकली फॉर यू। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, लोअर डिडक्शन की एंट्री वापस समझानी है, दीक्षा मैडम का क्वेरी है। रेस्ट ऑल द क्वेरीज आई होप आई हैव आंसर। अगर किसी की क्वेरी पेंडिंग है तो चैट में डाल दीजिए, मैं तब तक दीक्षा मैम की क्वेरी आंसर कर लेती हूँ। दीक्षा मैम, लेजर में कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लोअर डिडक्शन का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर वेंडर को जो नॉर्मल रेट है, जो आपका एक स्टैंडर्ड रेट है सब बाकी सारे वेंडर्स के लिए, उससे डिफरेंट रेट चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज क्लासिफाइड और कम्स अंडर एलडीसी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने लोअर डिडक्शन में 5% डिफाइन किया है, तो डिस्पाइट ऑफ आपके नेचर ऑफ पेमेंट में क्या रेट दिया हुआ है, डिस्पाइट ऑफ दैट आपने जो रेट अपने इस लेजर में दिया है, ये पर्टिकुलर वेंडर की लेजर में दिया है, उस रेट के अकॉर्डिंग एंट्री में कैलकुलेशंस होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने प्रोफेशनल फीस पे 1 लाख का अमाउंट लिया है, तो अगर 10% देखा जाए तो इट शुड बी 10,000। बट सिंस आनंद राठी के लिए वी हैव डन 5%, हमने एलडीसी रेट 5% दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्टेड होने के बावजूद भी जो अमाउंट कैलकुलेट हुआ है वो 5% पे हुआ है। दिस इज द एलडीसी एंट्री। Can you repeat the advance entry? Sure, we'll do it. Lower deduction, one fixed amount is given by the authority. Ma'am, you can ask them for a percentage because tally में amount define करने का column नहीं दिया हुआ है, and through customization also it is not possible because ये compliance related matter है। तो ये जब changes होते हैं इसमें, अगर amount में कुछ changes हो जाता है या percentages में कुछ changes हो जाता है, तो it is difficult to match with the compilation what we have done. ठीक है, सो इसके लिए आपको परसेंटेज ले लेना है अथॉरिटीज से, दे विल गिव यू द परसेंटेजेस एंड यू कैन मेंशन दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इनटू द लेजर। एडवांस एंट्री का कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, कर देते हैं। इज इट मैंडेटरी टू पास द एंट्रीज इन परचेज वाउचर? नहीं, नॉट नेसेसरी सर, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। आप एक्सपेंस में भी कर सकते हैं, बट देन यू जस्ट हैव टू कॉन्फिगर टीडीएस प्रॉपर्ली, ताकि फिर वो बुक हो जाए, मतलब टीडीएस ऑटो कैलकुलेट हो जाए। एक्सपेंसेस पे भी पीपल आर डूइंग, मतलब एक्सपेंस का वाउचर टाइप बना के दे डू इट इन एक्सपेंसेस आल्सो, दे डू इट इन जर्नल आल्सो, बट जर्नल में क्या होता है, आपको टीडीएस ऑटो कैलकुलेट होकर नहीं मिलता। हाँ, जर्नल में आपको टीडीएस ऑटो कैलकुलेट होकर नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई पीपल डू इट इनटू परचेज या एक्सपेंस। अभी हमें एक एंट्री रिपीट करने के लिए बताया गया था, प्लीज शो द एंट्री ऑफ एक्सपेंस वाउचर। एक्सपेंस वाउचर तो सेम रहेगा मैडम, आपको सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू ऑल्ट जी
अगर आप ऑल्ट जी में जाएंगे, ये एक सेकंड ना, मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। हाँ, ऑल्ट जी में जाना है आपको, यहाँ पे आके क्रिएट मास्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, उसको नाम देना है एक्सपेंस। यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट वाउचर टाइप एक्सपेंस करके विच वुड फॉल अंडर योर परचेज। तो उस पर बिहेवियर परचेज का आ जाएगा, बट एक्सपेंस की तरह वो बुक होगा, मतलब आपका वाउचर टाइप एक्सपेंस होगा, बिहेवियर परचेज का ही आएगा। ओके, ये वाउचर टाइप क्रिएट कीजिए और इस वाउचर टाइप में बुक कीजिए। मतलब अगर मैंने अभी ये क्रिएट कर लिया है, लाइक ये लो, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। नाउ व्हेन आई एम बुकिंग माय एंट्री, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाउचर्स में, व्हेन आई कम टू F9, तो मुझे वो दोनों ऑप्शन देगा, एक्सपेंस भी देगा एंड परचेस भी देगा। आई एम एबल टू सिलेक्ट विच एवर ऑप्शन आई विश टू। ठीक है, मैं सिलेक्ट करके एंड देन एंट्री बुक कर सकती हूँ। ओके, एक्सपेंस का एंट्री हमने दिखा दिया है। एंड विल इट देन टू कैलकुलेट, यस इट विल। क्या कैन वी बुक TDS इन अ सेपरेट एंट्री, नॉट इन परचेज और जर्नल? हाँ, सेपरेट आप बुक कर सकते हैं, बट देन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, वो जो ऑप्शन हमने एनेबल किया ना, डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, दैट इज नॉट टू बी एनेबल्ड। उसको आप नो रख के एंड यू कैन बुक अ डिफरेंट एंट्री, दैट इज फाइन। It will calculate TDS का, ledger का configurations if you have done properly, and nature of payment if you have created properly, then it will definitely calculate. If you are facing any issues, then get back to us. ठीक है, this is done, this is done. Again, is it mandatory? Is done. Okay, can you repeat the advance entry? Advance entry repeat करने का हमारा एक काम बाकी है, let's do it. हाँ, एडवांस एंट्री का पहले केस समझ लीजिए निधि मैम। केस ऐसा है कि आई एम टेकिंग एन एडवांस ऑफ 15 लाख, कोई एक पर्टिकुलर वेंडर से मैं 15 लाख का एडवांस ले रही हूँ, और 15 लाख का जो TDS है वो मैंने एडवांस का जो पेमेंट एंट्री किया है उसी में मैंने बुक कर दिया है। बट वाइल बुकिंग द परचेज इनवॉइस, आई एम मेकिंग द इनवॉइस ऑफ 20 लाख। होता है ना मेनी टाइम्स, जो एडवांस आया है उससे ज्यादा का इनवॉइस यू आर गोइंग टू मेक। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू बुक एन इनवॉइस ऑफ 20 लाख। तो जो बचा हुआ 5 लाख है उस पे अभी तक कोई TDS कहीं पे भी कैलकुलेट नहीं हुआ है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू डे बुक, एक सेकेंड, ऑल्ट F2, 1/11, 8/11। ठीक है, पहले पेमेंट एंट्री आप बुक कर लेंगे, आप बैंक को डेबिट करके पर्टिकुलर पार्टी को क्रेडिट करके जो भी आपका अमाउंट है वो दे देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, और यहीं पे TDS की लेजर सिलेक्ट कर लेंगे, सो दैट जितना भी अमाउंट आप एडवांस में रिसीव कर रहे हैं उसका TDS वहीं पे बुक हो जाए, दिस वे। ठीक है, ये बुक हो गया, ये नॉर्मल पेमेंट एंट्री थी, हमने सेव कर दी। अब बात कर रहे हैं हमारे परचेज इनवॉइस की। जस्ट नोट द डिफरेंस कि कमीशन एक्सपेंसेस के लिए जो एडवांस मैंने रिसीव किया था दैट वाज, सॉरी, जो एडवांस एंट्री जो हमने की थी दैट वाज ऑफ 15 लाख, और जो परचेज इनवॉइस बन रहा है दैट इज ऑफ 20 लाख। तो यहाँ पे जो 5 लाख बचा है उसका TDS बुक होगा इन माय परचेज इनवॉइस, और बचा हुआ 15 लाख का ऑलरेडी बुक हो चुका है इनटू माय पेमेंट वाउचर। ठीक है, मैंने GST कैलकुलेट किया। यहाँ पे TDS के बाद ये जो एलोकेशन की स्क्रीन आ रही है, इससे पहले आपको एक और ऑप्शन आएगा जो आपको बता रहा होगा कि डू यू वांट टू सेटल द एडवांस एंट्री विच यू हैव ऑलरेडी बुक्ड। अगर आप अगेंस्ट मतलब इफ यू एनेबल दैट ऑप्शन कि सेटल इट अगेंस्ट द एडवांस एंट्री, अगर आप उसको यस करते हैं तो ये स्क्रीन इस तरह से ओपन होती है, वेर यू आर एबल टू सिलेक्ट द अगेंस्ट रेफरेंस ऑफ पेमेंट वाउचर एंड द न्यू रेफरेंस फॉर द रिमेनिंग 5 लाख जिसपे TDS बुक नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं 15 लाख के राइट हैंड साइड पे TDS का अमाउंट नील है बिकॉज इट इज ऑलरेडी बुक्ड, और फिर 5 लाख जो बचा है उस पे 50,000 का TDS बुक हुआ है इनटू दिस पर्टिकुलर इनवॉइस। एंड हियर यू कैन सी अगेंस्ट रेफरेंस में पहले पेमेंट वाउचर आ गया 15 लाख का, देन न्यू रेफरेंस क्रिएट हुआ फॉर 50,000 दैट इज TDS का नया पेमेंट जो अभी हो रहा है, एंड देन न्यू रेफरेंस फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनवॉइस दैट इज 5 लाख जो ऊपर गया था इनवॉइस का, एंड 3,60,000 ऑफ द GST दैट इज 8,60,000। I hope I have answered your query well and you have understood what I mean to say. ठीक है, यहाँ तक की सारी क्वेरीज हमने देख ली है। अगेन आई हैव गॉट समथिंग, ओके थैंक यू, दैट्स माय प्लेजर मैडम। ठीक है, सो अभी तक हमने जो बात की है वो एंट्रीज लेवल पे हुई है। अब हम आपको फटाफट से एक रिपोर्ट डिस्प्ले कर देते हैं कि रिपोर्ट कैसे होगा, लाइक व्हेन यू गो टू DOT,
DOT is a shortcut for TDS reports. उसका full form है D stands for display more reports, O stands for statutory reports and T stands for TDS reports. तो DOT डॉट आपको याद रखना है फॉर TDS. ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपको सारे आपके चलान यहाँ पे मिलते हैं. आप अपना पीरियड दीजिए, जिस भी पीरियड के लिए यू हैव क्रिएटेड दी चलान फॉर TDS, और यहाँ पे आपको सारे चलान दिखेंगे. आपको वो चलान को रिकंसाइल करना है थ्रू ऑल्ट आर, यानी आपको अपना BSR कोड, चलान नंबर, चेक डेट, चेक नंबर, वो सारी चीजें फिल करनी है और वो पर्टिकुलर चलान रिकंसाइल हो जाएगा. और अगर चलान रिकंसिलिएशन में वो नहीं दिख रहे हैं ट्रांजैक्शंस, सो दैट आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट इनटू योर TDS आउटस्टैंडिंग. आप देख सकते हैं कमीशन एंड ब्रोकरेज, नेचर ऑफ पेमेंट वाइज आपको सारे आउटस्टैंडिंग TDS दिख जाएंगे. ठीक है, दीज आर योर TDS विच आर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम दिस मेनी डेज, कब ड्यू हुआ है, सारी चीजें आप देख सकते हैं. सी ड्यू ऑन भी दिख रहा है आपको, ओवर ड्यू बाय डेज कितना है वो भी दिख रहा है, अमाउंट पेंडिंग, ओपनिंग अमाउंट कितना है वो भी दिख रहा है, और ये आपको क्लासिफिकेशन मिल रहा है नेचर ऑफ पेमेंट वाइज. ठीक है, और बची आपकी फॉर्म 26 एंड फॉर्म 27 क्यू की रिपोर्ट्स. यहाँ पे यू कैन सी इंक्लूडेड इन रिटर्न आ रहा है तो वेल एंड गुड, योर ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी बीन काउंटेड इनटू द रिटर्न. अगर अनसर्टन में आ रहा है तो उसके रीजंस आपको वहां पे मेंशन किए हुए होते हैं. आपको डायरेक्टली वो रीजंस को आइडेंटिफाई करना है, लाइक वहां रीड करना है व्हाट द एरर इज सेइंग और उसके ऊपर एक्शन लेना है. मेनी अ टाइम्स एरर क्या होता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड और द लेजर विच यू हैव कॉन्फिगर्ड इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड. जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सी दिस इज वन ऑफ माय ट्रांजैक्शन ना, इस पे अपन GST का लेजर लेते हैं. बहुत सारे केसेस में आई मतलब 100 में से 99 क्लाइंट्स कम विद अस फॉर अनसर्टन ट्रांजैक्शंस, और अनसर्टन ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन यही आता है कि आपके जो GST लेजर्स है या जो अदर स्टॉक आइटम्स है, जो लेजर्स है, उसमें TDS प्रॉपर्ली कॉन्फिगर्ड नहीं है. कॉन्फिगर्ड नहीं है का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये GST का लेजर है जिसके ऊपर TDS नॉट एप्लीकेबल होने वाला है. बट व्हाट आर वी पीपल डूइंग, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल की जगह वी आर जस्ट कीपिंग इट अनडिफाइंड. हम उस पर कुछ डिफाइन नहीं कर रहे, या तो एप्लीकेबल भी नहीं कर रहे, नॉट एप्लीकेबल भी नहीं कर रहे. वो अनडिफाइंड होने की वजह से इट इज डायरेक्टली टेकिंग यू टू अनसर्टन ट्रांजैक्शंस. सो प्रॉपरली आपको इसको एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल डिफाइन करके कंट्रोल ए करके सेव करना है. ठीक है, ये कुछ अनसर्टन ट्रांजैक्शन में जो एरर आते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा. अगर आपने एडवांस पेमेंट किया है तो एडवांस पेमेंट मिल जाएगा, और अगर बुकिंग विद डिडक्शन वाउचर है तो डिडक्शन वाउचर मिल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिलेगी कि डिडक्शन नॉर्मल रेट पे हुआ है, हायर रेट पे हुआ है या लोअर डिडक्शन पे हुआ है. इफ आई चेंज द पीरियड टू 2 April 24, यस हियर यू कैन सी हमने लोअर डिडक्शन पे भी किया था एक एंट्री. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस बुक हुआ है. हियर यू कैन सी जीरो रेटेड टैक्सेबल नहीं है, अंडर एग्जेम्पशन लिमिट है. अंडर एग्जेम्पशन लिमिट भी अगर आपने TDS बुक किया है तो वो भी आप यहाँ से क्लासिफाई कर सकते हैं कि दिस इज द एग्जेम्पशन लिमिट विच इज गिवन, और इस पे आप ऐसे ऐसे TDS बुक कर रहे हैं. ठीक है, ये एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट आपको मिल जाती है फॉर योर फॉर्म 26Q एंड योर फॉर्म 27Q. अब हम बात करते हैं पेमेंट एंट्री की. व्हेन यू आर डूइंग द पेमेंट फॉर द TDS, जितना भी TDS पर्टिकुलर क्वार्टर का है वो जब आप पे कर रहे हैं तो आपको एंट्री कैसे करनी है. यू हैव टू कम टू वाउचर्स, यू हैव टू गो टू पेमेंट. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑप्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल F ऑटोफिल. यू कैन नोट इट डाउन, कंट्रोल F ऑटोफिल करके स्टार्ट पेमेंट सिलेक्ट कीजिए. TDS का पेमेंट है तो TDS सिलेक्ट कीजिए. जो पीरियड का आप पेमेंट कर रहे हैं वो पीरियड सिलेक्ट कीजिए. 1 April से विल टेक 30th April. ठीक है, जो आपका डिडक्शन टिल डेट है वो डेट लीजिए, जिस सेक्शन का आप पेमेंट कर रहे हैं. सी ऑल दिस डिटेल्स शुड कम ऑटोमेटिकली. ये लिस्ट अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यू हैव नॉट मेड एंट्रीज प्रॉपर्ली. कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस आउट हुआ है आपसे. ये जो लिस्ट आ रही है, दिस लिस्ट शुड कम ऑटोमेटिकली टू यू. आप जिस भी चीज का पेमेंट कर रहे हैं, इफ यू आर पेइंग इट फॉर 194C, ये लिस्ट आनी चाहिए आपको, वेयरइन यू आर गेटिंग द ऑप्शन टू सिलेक्ट. बैंक से पे करना है तो बैंक, और आप देख सकते हैं द TDS विच इज ऑलरेडी बुक्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो मैंने लिया है
वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है. दिस वे यू आर सपोज टू पास द पेमेंट एंट्री. कंट्रोल एफ ऑटोफिल से ही करना है. यू हैव टू नॉट मैन्युअली गो एंड एंटर द अमाउंट. ऑटोफिल से करना है, स्टार्ट एडजस्टमेंट करना है, टीडीएस सिलेक्ट करके पर्टिकुलर पीरियड देना है जिसका आप पेमेंट कर रहे हैं, and you have to select all the things from the options which you are getting. If you are not getting the options, please go and check out. You have missed with some of the other configurations. ठीक है. So yes, coming back to Zoom again, this was something which is called TDS in Tally Prime. इस तरह से आपको वहां पे enable करना है TDS. Yes. Just a minute. I hope I have already made the things relating to TDS easy for you, and maybe I have given a proper explanation of at least what the things are needed to be configured. ठीक है. How to add challan in Tally. Okay. ये when you export it from your site, जो साइट से आप एक्सपोर्ट करते हैं, दैट थिंग इज टू बी इम्पोर्टेड ओवर हियर. जब वो इम्पोर्ट होगा तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस आपको वहां पे दिखेंगे. ओके. Now we are having two more topics, Tally shortcuts और 7.0. अब बात करते हैं फटाफट से टैली के शॉर्टकट्स को अपन समझ लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. नॉट जस्ट समझ लेना एंड उसको बुक्स में रख देना, दैट इज नॉट आवर पॉइंट. वी हैव टू ब्रिंग दैट थिंग्स इनटू इम्प्लीमेंटेशन. जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी वो चीजें आपको अच्छी लगेंगी, एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड की इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग टू यू. अगर आप यहाँ पे बैठ के अपना 1.5 घंटा दे रहे हैं, इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम ओवर हियर, यू शुड मेक अ प्रॉपर यूज ऑफ इट. और उसके लिए नाउ आई एम शेयरिंग दी TDS shortcuts with you. These are really very beneficial shortcuts, and you are going to get a very good benefit of that. Let me just show you. हम बस 1 मिनट में अपना डेटा लोड कर लेते हैं. Here is my data for shortcuts. ठीक है. मैंने बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स नोट किए हुए. आई एम आल्सो गोइंग टू लाइक आस्क सम क्वेश्चंस टू यू पीपल. मुझे देखना है आप में से कितनों को वो शॉर्टकट्स ऑलरेडी पता है. एक वन ऑफ माय फेवरेट शॉर्टकट आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर. लेट मी जस्ट टेक द रिपोर्ट. अगर मैं इसको पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर लूं, लाइक फ्रॉम 1 मार्च ले लेते हैं. 24. I have that many transactions only. Okay. अभी ये कितने ट्रांजैक्शंस है? मे बी दे आर 10 or 12 ट्रांजैक्शंस है. अब मुझे बताइए, इफ आई हैव सिलेक्टेड दीज 2 ट्रांजैक्शंस और मुझे इन दोनों को डीसिलेक्ट करते हुए रिमेनिंग सभी को सिलेक्ट करना है, तो व्हाट इज द शॉर्टकट इनटू टैली? ऑन द चैट प्लीज बी वेरी क्विक. इफ यू नो, राइट इट डाउन. लेट मी ऑल्सो नो दैट पीपल आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन. मैंने 2 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किया है. ओके, जानवी मैम से कंट्रोल आर. ठीक है, मैं बताती हूँ. मैंने 2 ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट किया है अजंता ट्रांसपोर्ट के. नाउ हियर आई जस्ट वांट कि इन दोनों को मैं डी सिलेक्ट करके रिमेनिंग सभी को सिलेक्ट कर लूं. हाउ कैन आई डू दैट? जानवी मैम, कंट्रोल आर इज टू रिमूव लाइन. अगर आप कंट्रोल आर करते हैं ना, तो ये सिर्फ यहाँ से रिमूव होता है. वो मतलब बाकी सारे सिलेक्ट नहीं होते. मेरा जो क्वेश्चन है कि उन दोनों को डी सिलेक्ट करते हुए मुझे बाकी सबको सिलेक्ट करना है. ठीक है. कंट्रोल स्पेस नहीं, कंट्रोल स्पेस बार से सभी सिलेक्ट होंगे. सी व्हाट यू पीपल आर टेलिंग मी इज कि कंट्रोल स्पेस बार कीजिए, करेक्ट. बट हियर आई एम गेटिंग ऑल द ट्रांजैक्शन सिलेक्टेड. मेरा पॉइंट क्या है कि मुझे इन दोनों को जिनको मैंने सिलेक्ट किया है, दैट शुड बी डी सिलेक्टेड एंड द रिमेनिंग शुड बी सिलेक्टेड. सो प्लीज नोट डाउन, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट आई. सी आई एम टेकिंग 2 ट्रांजैक्शंस ऑफ अजंता ट्रांसपोर्ट. मैंने सिलेक्ट किया है. नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट एंड आई. आप देख सकते हैं वो 2 ट्रांजैक्शंस डी सिलेक्ट होकर के बाकी सारे ट्रांजैक्शन सिलेक्ट हो गए हैं. ये सारी चीजें जब आपको रिपोर्ट्स बहुत बड़ी बड़ी है, व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, जहां पे यू आर सीइंग अ रिपोर्ट ऑफ होल 1 मंथ, जहां पे बहुत ह्यूज लेवल पे ट्रांजैक्शंस है, तो आपको ये टाइप के शॉर्टकट्स काम आएंगे. यू हैव टू प्रेस कंट्रोल ऑल्ट आई. तो जो 2 सिलेक्टेड है वो डी सिलेक्ट होकर के बाकी सारे ट्रांजैक्शंस सिलेक्ट हो जाते हैं.
You can book journal voucher. Sunil sir, that is not a problem. Journal voucher can be booked, but for journal voucher, auto calculation का problem आता है. When you are asking me for TDS payment, yes you can, because ये जो stat adjustment हम कर रहे हैं ना, ये stat adjustment एक journal voucher ही हो रहा है. Like वो बन रहा सिर्फ payment voucher में, but it is like a journal voucher only. आप stat only select कर रहे हैं and everything is selected from the data which you have prepared only. ठीक है. हाँ, कंट्रोल आई हमने डिस्कस कर लिया. अब बात करते हैं, जैसे मैम ने, जानवी मैम ने हमें बताया कि आप इसे कंट्रोल आर कर सकते हैं. अब मैं ना 5-6 ट्रांजैक्शन ले लेती हूँ. सी आई हैव डन अभी एबीसी से लेके एयरटेल मुंबई सर्कल तक 5 ट्रांजैक्शन को मैंने कंट्रोल आर कर दिया. अब मुझे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन 5 में से जो लास्ट वाला था एयरटेल मुंबई, वही वापस रिस्टोर करना है. हाउ डू आई डू दैट? What is the shortcut key? Shortcut key is Control Alt I. For inverse selection, shortcut key is Control Alt I. वेरी करेक्ट. आरती मैम बता रहे हैं कंट्रोल यू. कंट्रोल यू से क्या होगा मैडम? जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो रिस्टोर हो जाएगा. वेरी ट्रू. सो अगर 5 ट्रांजैक्शन 10 ट्रांजैक्शन आपने एक साथ रिमूव लाइन किया है, एंड इफ यू वांट कि एक पर्टिकुलर लास्ट वाला जो है वो रिस्टोर हो जाए, तो आप कंट्रोल यू से करेंगे. अब मुझे बताइए, आई विश कि सारे के सारे रिस्टोर हो जाए. हाउ डज दैट हैपन? All the 5 which I selected are to be restored. How does that happen? If anyone is aware. Alt U. Very true, very true. करेक्ट है, करेक्ट है. ऑल्ट यू है उसका शॉर्टकट. ऑल्ट यू है. ठीक है. सो ऑल्ट यू से सारे रिस्टोर हो जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू आर अवेयर ऑफ. अब हम बात कर लेते हैं, इफ यू वांट टू इंसर्ट अ वाउचर इनटू दिस रिपोर्ट. अभी ये रिपोर्ट में इफ आई विश कि ये जो सेल्स का ट्रांजैक्शन है ना 137 वाला, इसके बाद में एक और वाउचर इंसर्ट हो जाए. हाउ डू आई डू दैट? Alt I. That's correct, Sanjay sir. How do I do that? By Alt I. Okay. हाँ, इस तरह से हुआ ऑल्ट आई से. ठीक है. ऑल्ट ए नहीं मैडम, ऑल्ट आई से हो रहा है. ऑल्ट ए से ऐड होता है. ठीक है. अभी हम इंसर्ट कर रहे थे, तो इंसर्ट के लिए आपको ऑल्ट आई यूज करना है. ठीक है. देन कमिंग टू, अगर मुझे कोई लेजर, अभी ये जो अजंता ट्रांसपोर्ट की लेजर है, इसको मुझे ड्रिल डाउन करके चेक करना है कि इसमें मैंने क्या डिटेल्स फिल किए हैं. हाउ डू आई डू दैट? मुझे ड्रिल डाउन करके चेक करना है कि अजंता ट्रांसपोर्ट कौन से ग्रुप में है, क्या डिटेल्स है उसके अंदर. दैट्स ट्रू. कंट्रोल एंटर. वेरी करेक्ट. कंट्रोल एंटर करना है आपको. जिस भी लेजर को चेक करना है उसके अंदर आपको कंट्रोल एंटर करना है. ठीक है. अब यही बात अगर हम करें कि मेरे पास बहुत सारे यूजर्स है एंड आई हैव नॉट गिवन एक्सेस ऑफ सेल्स वाउचर टू ऑल माय यूजर्स, व्हाट वुड दे डू व्हेन दे वांट टू सी दिस इनवॉइस? सी अभी मेरे पास एक्सेस है. नाउ व्हेन आई एम गोइंग बैक, आई एम कमिंग बैक ओवर हियर. अगर मेरे पास सेल्स का एक्सेस है तो मैं एंटर करके ये पूरा इनवॉइस देख सकती हूँ. करेक्ट. नाउ व्हाट इफ आई डू नॉट हैव द एक्सेस टू सी द सेल्स वाउचर? अब मुझे अगर इसके अंदर जो समरी है उसका एक ओवरव्यू या इसी ट्रांजैक्शन को एक समराइज्ड वे में देखना है, हाउ डू आई डू दैट? मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे वार्निंग आ रहा है कि नो एक्सेस अलाउड और ये ओपन नहीं हो रहा है, तो कैसे करूंगी मैं? करेक्ट. करेक्ट. शिफ्ट एंटर. दैट्स करेक्ट. सो आप शिफ्ट एंटर से उसको व्यू कर सकते हैं. ठीक है. जो भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक्सेस नहीं है उसको आप शिफ्ट एंटर करके ऐसे व्यू कर सकते हैं. एंड एक मिनट, हाँ, शिफ्ट एंटर तो आप कर ही सकते हैं. ऑल्सो वन मोर थिंग वाज देयर, लेट मी जस्ट चेक आउट. हाँ, ऑल्ट एंटर भी हो सकता है. सी शिफ्ट एंटर करने से उसके डिटेल्स आपको नीचे लाइन आइटम की तरह मिलते हैं. इफ यू विश टू सी दी होल एंट्री, वैसे ही आप एंट्री देखना चाहते हैं जैसी सेल्स की एंट्री दिखती है, तो यू कैन डू ऑल्ट एंटर. ऑल्ट एंटर से आपको उसका पूरा व्यू मिल जाता है. सी सेम व्यू विच यू आर गेटिंग इनटू सेल्स का वाउचर टाइप. ठीक है. यस, ऑल्ट एंटर शिफ्ट एंटर दोनों बता दिया है. नाउ थोड़ा अच्छे वाले शॉर्टकट्स विच आई थिंक यू माइट नॉट बी अवेयर, उसको हम देख लेते हैं. ठीक है. इफ आई एम गोइंग टू दिस एंट्री,
मेरे सेल्स का ये, अच्छा इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है. लेट मी टेक एंट्री विच हैज मल्टीपल स्टॉक आइटम्स. चलो विल पास अ न्यू एंट्री. यहाँ पे हम जाते हैं परचेज ही बुक कर लेते हैं. लेट्स टेक दिस परचेज. 1 2 3 4 5 भी ले लिया मैंने, 1 क्वांटिटी. ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड 4 5 6 7 8. इसका 10 क्वांटिटीज. 5000. ठीक है, ये भी ले लिया मैंने. अगेन आई टेक वन मोर कॉपर बार. प्राइमरी वन गो डाउन से 15. 1000. ठीक है, 3 ले लिए. विल टेक सम मोर. अब आई हैव टेकन 4 आइटम्स. अब क्या होता है, व्हेन आई एनेबल जीएसटी इनटू माय टैली प्राइम, और जब मैं जीएसटी रिपोर्ट्स टैली से जनरेट करती हूँ, तो इन केस अगर कोई भी आइटम पे मैंने एचएसएन प्रॉपर नहीं दिया है, लाइक इनवैलिड एचएसएन है या स्पेसिफाइड नहीं है एचएसएन, तो वो मुझे जीएसटी की रिपोर्ट्स में अनसर्टन में रिफ्लेक्ट होता है कि एचएसएन फॉर दिस मेनी इनवॉइसेस, लाइक दिस मेनी आइटम्स आर इनवैलिड और इनकरेक्ट. वहां पे आपको सिर्फ क्या दिखता है कि एचएसएन इज इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड. अब आप मुझे बताइए, व्हेन आई हैव सिलेक्टेड 4, अभी मैंने तो सिर्फ 4 आइटम सिलेक्ट किए हैं. नॉट नेसेसरी आपके पास भी 3 या 4 ही आइटम्स हो. Maybe there is a case where you are having 15 to 20 stock items into one particular invoice only. How are you going to sit and search for each and every? Like what happens? What you will be doing is कि F12 में आके ये जो modify GST details का screen है, इसको आप yes करते हैं and then individually एक एक transaction के अंदर like this way. ये लिया आपने, फिर यहाँ पे यू कम एंड सी कि ओ इसमें मैंने नॉट अवेलेबल रखा हुआ है, तो इसमें डिटेल्स नहीं दिए हैं, ये पर्टिकुलर आइटम पे मुझे चेक करना है. और एल्स यू डू कंट्रोल एंटर एंड यू चेक इट ओवर हियर कि मैंने स्पेसिफाई किया है या नहीं. बट दिस इज अ वेरी मच टाइम टेकिंग प्रोसेस. अगर आपके पास 15-20 स्टॉक आइटम्स लिए हुए हैं या फिर 4 भी है तो इट इज नॉट इजी. फर्स्ट वाला है तो ठीक है, बट व्हेन इट इज द लास्ट वन, तो एंटर एंटर करके आना एंड चेकिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बाय कंट्रोल एंटर, ईच एंड एवरी आइटम बाय कंट्रोल एंटर इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस. हाउ डू यू डू इट सिंपली? यही स्क्रीन पे इसका आंसर है. इफ यू गिव अ प्रॉपर अटेंशन ऑन दिस स्क्रीन, आपको इसका आंसर मिल जाएगा. एंड आई विल वेट फॉर यू गाइज टू आंसर. आई हैव रिसीव्ड सम आंसर्स लाइक कंट्रोल ओ. नहीं, कंट्रोल ओ तो रिलेटेड रिपोर्ट्स के लिए है. रिलेटेड रिपोर्ट्स में व्हेन यू गो एंड यू सी, तो आपको पूरा लाइक ईच एंड एवरी स्टॉक आइटम का सामने ऐसे दिखेगा, लाइक वॉट एवर यू हैव स्पेसिफाइड वो ऐसे दिखेगा. बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू अल्टर, मैं यहाँ से सिर्फ मैं व्यू कर सकती हूँ. दैट इज ट्रू कि मैं यहाँ से व्यू कर सकती हूँ, बट इफ आई विश टू अल्टर एट द सेम टाइम, देन व्हाट कैन आई डू? ऑल्ट आई बताया है. यस, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ. ऑल्ट आई नहीं है सर, इट इज कंट्रोल आई. बट कंट्रोल आई में व्हाट? सर इज वेरी नियर बाय टू द आंसर. कंट्रोल आई में यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली सी कि आपको डिटेल्स किसका देखना है. लेजर का देखना है तो आप लेजर का डिटेल्स देख सकते हो. यहीं पे यू विश की ऑल्टर करना है कुछ, तो यू कैन ऑल्टर इट ओवर हियर. ठीक है. सेम वे कंट्रोल आई करके यू कैन सी द स्टॉक आइटम ऑल्सो. स्टॉक आइटम पे आइए, जो पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का नाम है वो सिलेक्ट कीजिए. सी द डिटेल्स ओवर हियर. इफ यू कैन सी कि हाँ यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्टली कम ओवर हियर, press specify details and give the details over there. ठीक है. this way you can alter. control I करके you can do it for ledger also, stock item also and voucher level also.
ठीक है, यस, दिस इज वन थिंग। और ऐसी हम कुछ चीजों को बात कर लेते हैं, लाइक हाँ, किसी एंट्री को हम सेव करते हैं। चलो, आई डिड अ कंट्रोल ए, हाँ, जीएसटी डिटेल्स आर ओवर, ओके, 31 मार्च 24 की एंट्री है, करेक्ट। एस्केप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 31 मार्च 24 आई डिड परचेज का एंट्री ना, यूर ओवर यूर इट इज, हाँ, ठीक है। नाउ टेल मी कि मैंने यहाँ पे 4 आइटम्स लिए हुए हैं, कंसिडर अगर यहाँ पे 15 आइटम्स होते और जो 13th नंबर पे जो आइटम है वो मुझे डिलीट करना है, आई डू नॉट वांट दैट थिंग टू कम इनटू माय लिस्ट, वो लाइन आइटम मुझे डिलीट करना है, हाउ कैन आई डू दैट? अभी मुझे ये जो कॉपर बार है ये डिलीट करना है, मान लीजिए, हाउ कैन आई डू दैट? एनी आइडिया हाउ कैन आई डू दैट? Two ideas are there, let me just see. Okay, alt D is not correct, control D is correct, alt end, let me just check, एक सेकेंड, कंट्रोल डी करेक्ट है, ऑल्ट डी से वाउचर डिलीट होगा सर, ऑल्ट डी से ये पूरा वाउचर डिलीट होगा, ठीक है, ऑल्ट डी इज नॉट अ शॉर्टकट टू डिलीट वन पर्टिकुलर लाइन आइटम, ठीक है। और एक और क्या था, ऑल्ट एंड, नहीं, ऑल्ट एंड इज ऑल्सो नॉट वर्किंग ओवर योर, करेक्ट आंसर इज कंट्रोल डी। कैसे होता है, यू डायरेक्टली कम टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक आइटम जो आपको डिलीट करना है एंड यू प्रेस कंट्रोल डी, तो वो लाइन आइटम पूरा निकल जाएगा एंड द रेस्ट विच आर बिलो दैट विल कम अ स्टेप अहेड, ठीक है, कंट्रोल डी होता है, ठीक है। इन केस अगर आपको कंट्रोल डी नहीं यूज करना है तो आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, दैट इज एंड ऑफ लिस्ट। अगर आप लेटेस्ट रिलीज में है तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड ऑफ लिस्ट का, यू डायरेक्टली क्लिक एंड ऑफ लिस्ट, वो स्टॉक आइटम निकल जाएगा और उसके नीचे जो भी दूसरे आइटम्स है वो एक लाइन ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। क्लिक एंड ऑफ द लिस्ट, यस ट्रू, एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं आप, या फिर आप कंट्रोल डी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज की बात करते हैं, मैं फिर से इस इनवॉइस को रीसेव करती हूँ, इसमें नरेशन देते हैं हम, ठीक है, टेक्स्ट, मैंने नरेशन दिया, मैंने ओ करके सेव कर दिया, ठीक है। अब अगर मुझे जो अगला इनवॉइस बनाना है उसमें मुझे सेम नरेशन रिपीट करना है, हाउ डू आई डू दैट? अगर सबको पता है तो विल जस्ट चेक, यस ट्रू, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से जो लास्ट इनवॉइस में आपने नरेशन दिया है वो यहाँ पे रिपीट हो जाता है, दैट इज कंट्रोल आर, करेक्ट। ओके, मेनी ऑफ अस आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ये हो गया। नाउ कमिंग टू, अगर आपको जीएसटीआर रिपोर्ट से, आप जीएसटी रिपोर्ट में है, वहां से आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है डायरेक्टली फ्रॉम टैली, यू विश टू गो टू जीएसटी पोर्टल, व्हाट इज द शॉर्टकट? व्हाट इज द शॉर्टकट? ओके, आई हैव गॉट सम आंसर, कंट्रोल जी 9, एक्सचेंज ऑल्ट जेड, नहीं, एक्सचेंज ऑल्ट जेड इज फॉर जीएसटी रिलेटेड एक्टिविटीज, मतलब आपको जीएसटी रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी करनी है थ्रू टैली तो आप एक्सचेंज से कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग कि मुझे जीएसटी रिटर्न से ही, जो जीएसटी रिपोर्ट है वहीं से डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे जाना है। ओ दैट्स करेक्ट, सर को पता है, फरद सर हैड गिवन द करेक्ट आंसर ओवर हियर, दैट इज ऑल्ट वी, ठीक है, ऑल्ट वी इज द शॉर्टकट, मैं दिखा देती हूँ, व्हेन यू गो टू डीओजी एंड यू कम टू दिस रिपोर्ट, यहाँ पे आपको मिलता है ओपन जीएसटी पोर्टल, ऑल्ट वी, ओके, ठीक है। अभी कुछ बेसिक चीजें हैं जो टैली में नहीं दी हुई है, बट मे बी देर आर पीपल हु हैवंट यूज्ड इट, या हम भी अगर यूज कर रहे हैं तो वी आर नॉट यूजिंग इट टू इट्स फुलेस्ट, सो लेट्स जस्ट चेक फॉर दैट, ठीक है। टैली अगर कोई भी अपडेट लेकर के आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन देता है टैली, वेयर डू यू गेट दैट नोटिफिकेशन?
अगर आपका टीएसएस एक्सपायर हो रहा है, या अगर कोई न्यू रिलीज आया है, या टैली हैज गॉट सम अपडेट्स इनटू दैट, तो उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है. वेयर इज दैट नोटिफिकेशन? Right side of tally. Okay, ring button above the help button, that's true. Ring button above the help button, लेकिन उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एन. ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एन से आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन कौन से रिलीज में है, कौन सा रिलीज अवेलेबल है आगे, या फिर कुछ अगर अपडेट्स हुई है, और एल्स अगर टीएसएस एक्सपायर हो रहा है. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गिवन एज अ नोटिफिकेशन ओवर हियर. ठीक है, इफ यू आर नॉट अवेयर वी कैन गो एंड चेक इट ओवर देयर. बराबर, रेड डॉट जो आ रहा है उस पे, रेड डॉट का वही मतलब है कि समथिंग न्यू हैज कम बट वी हैवंट येट स्विच्ड टू दैट. बराबर. एक तो कंट्रोल ऑल्ट एन है. ओके, हाउ मेनी ऑफ अस आर यूजिंग फिल्टर? फिल्टर ऑप्शन अगर कोई यूज कर रहा है, फिल्टर, फिल्टर क्या है? फिल्टर का शॉर्टकट कंट्रोल एफ. बराबर. और फिल्टर में और क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं? लाइक इफ आई विश टू अप्लाई 2-3 फिल्टर्स एट द सेम टाइम, इज इट पॉसिबल? मल्टीपल फिल्टर्स अगर मुझे अप्लाई करना है, इज इट पॉसिबल? हाउ? कंट्रोल एफ करने के बाद मैं क्या करूं? ऑल्ट F12. यस, चूज एडवांस फिल्टर. यस. तो आपको जो फिल्टर्स मिलता है, जैसे इफ यू गो टू डे बुक, इफ यू अप्लाई फिल्टर, तो यहाँ पे ये बेसिक फिल्टर है. इसी के साथ साथ यू आर गेटिंग 2 डिफरेंट फिल्टर्स, मल्टी फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर. आप F6 में जाएंगे तो आप मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आप F7 में जाते हैं तो आप एडवांस फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं. एडवांस में बेसिकली आपको कौन से फील्ड पे अप्लाई करना है, व्हाट थिंग्स यू वांट कंटेनिंग इनटू दैट, व्हाट यू विश कि ये नहीं होना चाहिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कंटेनिंग, एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड ओवर हियर. यस, F6 एंड F7 ट्रू. ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा रिपोर्ट लेवल पे. रिपोर्ट लेवल पे अगर मुझे कुछ शॉर्टकट्स यूज करने हैं तो हाउ डू आई डू दैट? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे जो ये रिपोर्ट मिल रही है, ये जो मेरा बैलेंस शीट है, ये मैं देख पा रही हूँ एज एट 31 मार्च 24 जो है. अब मुझे अगर इसको कोई अलग व्यू से देखना है, अलग व्यू से इन द सेंस, इफ आई विश टू सी कि मैंने, मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वी हैव पलक एंड कंपनी. मेरी एक पलक एंड कंपनी है जो कि एक ग्रुप कंपनी है, जिसके अंडर आई हैव 5 इंडिविजुअल कंपनीज. नाउ आई विश टू सी द बैलेंस शीट का टोटल ऑफ ऑल दोस 5 कंपनीज एट वन प्लेस. अगर मैं एक मतलब जो मेरा ग्रुप कंपनी है वो मैं ओपन कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि साइड बाय साइड जो भी मेरी कंपनीज है, पलक एंड कंपनी, मतलब पलक एंड वेयर हाउस जो है, पलक एंड कंपनी जो है, पलक एंड ऑफिस जो है, सारे मुझे एक साथ दिखे. हाउ डू आई सी दैट? हम्म, ऑल्ट सी. ऑल्ट सी में, ऑल्ट सी में तो मुझे वही दिख रहा है. पीरियड अप्लाई करके आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हेन यू चेंज द पीरियड, कि हाँ मुझे 2 अलग अलग पीरियड्स का देखना है, यू कैन गो थ्रू ऑल्ट सी. एक चीज आप मिस कर रहे हैं, शॉर्टकट इज करेक्ट, बट वन थिंग यू आर मिसिंग कि क्या होना चाहिए कंपल्सरीली. अभी मैंने एपेक्स इलेक्ट्रिकल्स एक कंपनी ओपन किया हुआ है. इफ आई विश कि मैं यहीं पे ऑल्ट सी करके 5 कंपनीज का देख पाऊं, तो इज इट पॉसिबल? यस, एक्चुअल पॉइंट इज दिस कि ऑल कंपनीज शैल बी ओपन, मतलब सारी जितनी भी कंपनीज को आप देखना चाहते हैं वो कंपनीज लोडेड होनी चाहिए. ठीक है, ये थोड़ा सा उसमें कंपल्शन है कि आपकी सारी कंपनीज लोडेड होंगी, तभी आपको वो पर्टिकुलर कंपनीज का कंपैरिजन मिलता है. ठीक है. हाँ, F3 से आप चूज करके सारी कंपनीज को लोड कर लीजिए. लोड करने के बाद सारी जितनी कंपनीज लोडेड है उन सारी कंपनीज का आप एक साथ रिपोर्टिंग देख सकते हैं. ऑल्ट सी से ये हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे ऑल्ट एन भी है आपके पास, ऑटो कॉलम, वेर यू कैन सी मंथली रिपोर्ट्स इफ यू विश टू. ये देखिए मंथली व्हाट वाज द समरी, वो भी आपको मिलता है.
यहाँ पे आपको डेली भी मिलता है। लाइक आपको कहाँ पे एक्सेस होगा वो रिपोर्ट, व्हेन यू कम टू स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में अगर मुझे चेक करना है कि जैसे आप देख सकते हैं मेरा हैवेल्स का स्टॉक जो है वो नेगेटिव है, राइट। इफ आई विश कि ये कब नेगेटिव गया है, आई वांट टू सी दैट। मैंने क्या किया, F5 कर लिया टू सी इट स्टॉक आइटम वाइज। यहाँ पे आई कैन सी कि दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, बट ऑन विच डेट, विच पर्टिकुलर डेट डिड इट गो नेगेटिव, वो अगर मुझे चेक करना है तो योर यू कैन अप्लाई ऑटो कॉलम एंड यू कैन फेच द डिटेल्स डेली। आप डेली पे लेकर के आ जाइए तो आपको उस पर्टिकुलर मंथ का, मतलब लाइक उस पर्टिकुलर मंथ में जितनी डेज है वो सारे डेज का इंडिविजुअल रिपोर्टिंग मिल जाता है। तो यू कैन कम टू नो कि इस पर्टिकुलर डेट पे मेरा ये स्टॉक आइटम नेगेटिव चला गया था। ओके, रिपीट प्लीज। ओके श्योर, दिस पॉइंट ओनली ना, स्टॉक आइटम नेगेटिव वाला ना, ठीक है। ये देखिए, आई केम टू स्टॉक समरी, बराबर। यहाँ पे मैं स्टॉक समरी पे आई, आई डिड F5, बराबर। अब मुझे मेरे सारे स्टॉक आइटम तो दिख रहे हैं, बट जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये हैवेल्स का जो स्टॉक है ये 449 नेगेटिव दिखा रहा है, या फिर आप इसी को कंसिडर कर लीजिए कॉपर बार, ये 96 नेगेटिव दिखा रहा है। इफ आई विश टू सी कि मेरा ये स्टॉक नेगेटिव किस दिन गया है, एट व्हाट डेट, वो अगर मुझे चेक करना है तो Alt N से रिपोर्ट को डेली बना लीजिए। Alt N इज फॉर ऑटो कॉलम, वहां से डेली कीजिए। टोटल कॉलम्स इफ यू विश टू सी, जितने कॉलम्स देखने हैं आप डाल सकते हैं, एंड दिस वे यू विल गेट अ रिपोर्ट। तो आप यहीं पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्रॉम डे 1, अप्रैल के डे 1 से मेरा कॉपर बार का जो स्टॉक है वो नेगेटिव था। एंड इफ यू विश टू सी फॉर हैवेल्स, तो हैवेल्स का मेरा स्टॉक यहाँ तक करेक्ट है, जहां पे वो नेगेटिव जाएगा आई कैन गेट अ रिपोर्ट फॉर दैट कि हाँ ये देखिए दिस वाज नेगेटिव ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, यहाँ तक इट वाज ओके, यहाँ पे ये नेगेटिव गया है, वो मैं चीजें यहीं से क्लासिफाई कर सकती हूँ। नो बैलेंस शीट वाला भी रिपीट करिए करिए, ओके ठीक है, बैलेंस शीट वाला कर देती हूँ। बैलेंस शीट शॉर्टकट रिपीट कर देती हूँ, ये मैंने कर दिया स्टॉक आइटम वाला। बैलेंस शीट में हमने ये बात की थी कि Alt C करके आप यहाँ पे पीरियड दे सकते हैं इफ यू विश टू सी कि अलग अलग पीरियड का मुझे देखना है, और बेस करेंसी या करेंसी इफ यू वांट टू स्विच, मुझे रुपीज में नहीं मुझे डॉलर्स में देखना है, तो वैसे आप देख सकते हो। मतलब इंडिविजुअल कंपनी का अगर Alt C करोगे तो यू कैन हैव अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट पीरियड्स। अगर आपको देखना है लास्ट मंथ से, मतलब लास्ट मंथ का फंडिंग सोर्स क्या था, कैपिटल कितना था, गेन कितना हुआ है, व्हाट वाज द प्रॉफिट यू मेड, व्हाट आर द स्टेटस एंड सर्कमस्टेंसेस इन दिस पर्टिकुलर ईयर, 2 इयर्स का कंपैरिजन अगर आपको करना है इन सिंगल कंपनी तो आप Alt C से कीजिए। अगर आपको मल्टीपल कंपनीज का करना है तो सारी कंपनीज को लोड कीजिए, और वो सारी कंपनीज का एज ऑन डेट प्रॉफिट क्या है, एज ऑन डेट बैलेंस स्टेटस क्या है, वो आप चेक कर सकते हैं थ्रू Alt C। ये बैलेंस शीट का शॉर्टकट था, ठीक है। अब TDS के अंदर वी हैव कस्टमाइज्ड अ वंडरफुल रिपोर्ट। अब मुझे एक बात बताइए, आई एम टेकिंग यू ऑल बैक टू TDS अगेन। अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है लाइक DOT किया मैंने, आई केम ओवर हियर, मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ तो ये जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है, ये रिपोर्ट मुझे सिर्फ क्या बता रही है, पार्टी का नेम यानी मेरे जो वेंडर है वो, एसेसेबल वैल्यू कितना है, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, कितना डिडक्टेबल टैक्स बाकी है। अगर मैं इसको F5 करती हूँ तो ये मुझे कैटेगरी वाइज मिल रहा है। बट इफ आई विश टू सी कि मुझे जो पेमेंट डिटेल्स है, जो पार्टी डिटेल्स है, जो डिडक्शन डिटेल्स है, जो नेचर ऑफ पेमेंट है, जो GST चार्ज हुआ है, या जो मैंने नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर परसेंटेजेस डिफाइन किया है, ऑल थिंग्स एट वन प्लेस, तो मुझे टैली में कोई रिपोर्ट है क्या ऐसी जो मिलेगी? एनी रिपोर्ट कुड ब्रिंग मी दिस थिंग्स एट वन प्लेस। सो ऐसी रिपोर्ट टैली में नहीं है। देयर इज नो रिपोर्ट इनटू टैली जहां पे आप ये सारी चीजें एट वन प्लेस देख पाए। सो वी हैव डन अ कस्टमाइजेशन ऑन दिस थिंग। मैं वो रिपोर्ट्स भी अभी आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। इफ यू विश कि हाँ ये पर्टिकुलर रिपोर्ट हमें हमारे एंड पे चाहिए, जस्ट ड्रॉप डाउन योर ईमेल आईडी।
चैट में आपका ईमेल आईडी ड्रॉप कीजिए, इसका डेमो जो है हम आपके लिए शेड्यूल करके इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको ऑन योर पीसी आपको करके दे देंगे, राइट। यहाँ पे TDL में जाके हमें ये TDL को लोड करना है, वेयर वी हैव गॉट द कस्टमाइजेशन फॉर TDS रिपोर्ट्स। ठीक है, ये मैंने लोड किया। लोड करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो मेरे टैली में एक टैब एक्सटेंड हो गया, दैट इज गेटवे। यहाँ पे मैंने कम एंड सी TDS एक्सपेंसेस रिपोर्ट, तो यहाँ पे मुझे इस रिपोर्ट में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, जहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स, नेचर ऑफ पेमेंट, ईच एंड एवरीथिंग कम्स ऑन वन प्लेस। चालान रिकंसिलिएशन डिटेल्स तक भी मुझे साथ में मिल जाती है। इसे ओपन होने देते हैं। यस, हियर यू कैन सी अ डिटेल्ड रिपोर्ट। देख सकते हैं आप कितने कॉलम्स हैं। नेम ऑफ द डिडक्टी, वाउचर नंबर, वाउचर डेट, वाउचर टाइप, सप्लायर इनवॉइस नंबर, एक्सपेंस हेड, द सेक्शन, डिडक्टी टाइप, थ्रेशोल्ड लिमिट, पैन, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट, डेट ऑफ पेमेंट, कौन से क्वार्टर में है, Q1, Q2, वो भी मिल जाता है। लोअर डिडक्शन अगर है तो वो भी मिल जाता है आपको। एप्लीकेबल TDS रेट क्या डिफाइन किया है, इफेक्टिव TDS रेट क्या है, व्हाट इज द GST इनटू दैट पर्टिकुलर इनवॉइस, व्हाट इज द TDS चार्ज्ड, चालान डिटेल्स, नेट पेमेंट मेड टू द वेंडर, डेट ऑफ पेमेंट एज पर द चालान, ड्यू डेट और डिफरेंस इन डेज भी, इफ द पेमेंट इज नॉट मेड तो कितना डेज एक्सीड हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड द नरेशन एज वेल। ऐसा एग्जॉस्टिव व्यू का TDL हमने कंपाइल किया है फॉर TDS रिपोर्ट्स। इफ यू विश टू हैव अ एक्सपीरियंस और अ डेमो ऑफ दिस थिंग एट योर प्लेस, ड्रॉप डाउन योर मेल आईडी, drop down your mail ID. I also have a free gift for you, but that is to be discussed at the end for those who have given their dedicated hours to us. This is a customized report. If you wish to have an experience, you can drop down your mail IDs. We will be getting back to you. ठीक है, आपने देख ही लिया रिपोर्ट में कितनी चीजें हैं, जितने टैब्स हैं मैंने सारे एक्सटेंड करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू शॉर्टकट्स। ये जो गिफ्ट था ये TDS पे था, करेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे शॉर्टकट के गिफ्ट पे। जो हमने शॉर्टकट्स देखे उसके साथ साथ आई हैव अ फ्री गिफ्ट फॉर यू ऑल। वो गिफ्ट मैं पहले यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ, फिर आप लोगों को दे देती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है टैली हैज आल्सो गिवन एज अ डैशबोर्ड। टैली ने डैशबोर्ड दिया है, डैशबोर्ड एक्सप्लोर किया है किसी ने? हम क्या सोचते हैं देख के, ये तो ओनर लेवल का है, हमारे क्या काम का। सेल्स ट्रेंड है, परचेज ट्रेंड है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, ओनर्स आर गोइंग टू डील विद दिस, व्हाट शुड आई डू विद दिस, राइट। व्हाट इफ आई से कि ये डैशबोर्ड को मैं आपके वर्किंग के हिसाब से कंपाइल कर सकती हूँ। अगर आप GST देखते हैं तो मैं आपके लिए इसको GST डैशबोर्ड बना सकती हूँ। इफ यू डील इनटू बैंकिंग तो मैं आपके लिए इसको बैंकिंग का डैशबोर्ड बना सकती हूँ। इफ आई गिव यू कि हाँ ये हो सकता है, तो ये चाहिए क्या आपको? डू यू विश टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस? अच्छा, आई एम गेटिंग सम येसेस, यस 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 मिला तो है। सो अगर आपको लगता है कि दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, तो मैंने GST का एक डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका जो TSF फाइल है दैट इज बीन गोइंग टू बीन सप्लाइड टू यू ऑल फॉर फ्री। इट इज नॉट चार्जेबल, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट फ्रॉम एमटेक फॉर ऑल द यूजर्स, ऑल द people who have given their dedicated hours to एमटेक to our webinar. I am going to share that TSF to all of you जिन्होंने मुझे मी करके मैसेज ड्रॉप किया है इन द चैट। मैं पहले डैशबोर्ड दिखा देती हूँ, जस्ट सी, हैव अ लुक एट दैट डैशबोर्ड। सी, दिस इज अ डैशबोर्ड जहां पे GSTR 1 से लेके रिको तक एंड फाइनली लायबिलिटी और ITC के टैब तक आपकी कौन सी एक्टिविटीज कितनी पेंडिंग है उसका पूरा ट्रैक ऑन वन सिंगल रिपोर्ट। देखो, अनसर्टन ट्रांजैक्शंस इनटू माय GSTR 1 मैंने एंटर किया, आई डायरेक्टली वेंट टू दैट ट्रांजैक्शंस, मैं एस्केप करके आई,
आई केम टू GSTR 2B, अनसर्टन ट्रांजेक्शन इनटू माय 2B, मैंने एंटर किया, आई डायरेक्टली रीच टू दैट। यहीं पे मैंने ऑल्ट F2 किया, पूरे साल भर का पीरियड दिया, एंड आई सर्च फॉर द रिपोर्ट, आई गॉट द रिपोर्ट एट वन प्लेस। मेरा रिको में कितना काम बाकी है, मेरा पेंडिंग एक्टिविटीज इनटू फाइलिंग कितनी है, अपलोड कितना है, 3B में मेरा क्या काम बाकी है, मेरी लायबिलिटी और ITC का क्लेम क्या है टिल डेट, अगर मुझे चाहिए एट वन प्लेस, आई एम गिविंग यू द डैशबोर्ड फॉर फ्री। जस्ट पुट इट इनटू योर टैली एंड experience this report at your place. Just drop me to me. Please give me TCP. Sure. Sir, please get back to us. आप मेल आईडी और me drop कर दीजिए. Me वाला thing is for free. So I am going to attach it into mail to all of you, those who are giving me your mail IDs and the replies into me. ठीक है, अब मैं आपको ये TSF शेयर तो कर दूंगी, आपको TSF रखनी कहाँ पे है उसकी हम बात करते हैं। सी व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये नोट कर लीजिए कि आपको अपना टैली जो है उस पर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन करना है। क्या करना है? ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन के अंदर यू आर गेटिंग अ फोल्डर नेम्ड कॉन्फिग, यू आर गेटिंग अ फोल्डर नेम्ड कॉन्फिग। कॉन्फिग में जाके ये फोल्डर आपके यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इफ यू हैव क्रिएटेड अ TSF फाइल बिफोर तो आपके पास होगा, इफ यू हैव नॉट तो आपके पास ये फोल्डर नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये नाम नोट करके रख लीजिए, रिपोर्ट व्यूज नाम से आपको फोल्डर बनाना है एट योर प्लेस। आपके टैली में रिपोर्ट व्यूज नाम का फोल्डर आपको बनाना है, स्पेस नहीं रखना है बीच में, रिपोर्ट व्यूज ज्वाइंट रहेगा, यही सेम नाम से फोल्डर बनाइए एंड हमारा दिया हुआ TSF इसके अंदर रखिए। यू विल गेट द सेम डैशबोर्ड एट योर प्लेस। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ओपन फाइल लोकेशन करना है, कॉन्फिग में जाना है, कॉन्फिग फोल्डर के बाद रिपोर्ट व्यूज का फोल्डर, इफ यू हैव वेल एंड गुड, इफ यू डू नॉट हैव मेक अ फोल्डर, नाम रिपोर्ट व्यूज होना चाहिए, सब कुछ छोटा होना चाहिए इनटू स्मॉल लेटर्स और कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जाकर के ये फाइल जो हम सप्लाई कर रहे हैं बस पेस्ट कर दीजिए, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेम डैशबोर्ड एट योर प्लेस। बराबर। कमिंग बैक टू टैली अगेन। ओके, मी आ गया है। ठीक है, जितने भी मीज आए हैं डोंट वरी, वी आर हैविंग योर डिटेल्स, वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू विद इन अ डे। ठीक है, कल तक आपको ये TSF भी मिल जाएगा एंड इफ यू विश टू हैव दैट TDS रिपोर्ट्स तो वो भी आपको एक्सपीरियंस करवा देंगे। आई हैव समथिंग ओवर हियर, मी। ओके, ठीक है, चलो ये भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं व्हाट 7.0 इज गोइंग टू ब्रिंग टू यू। क्या ला रहा है 7.0? अभी लास्ट रिलीज कौन सा आया हुआ है, लेटेस्ट रिलीज? बात करते हैं लोगों से। व्हाट इज द लेटेस्ट रिलीज विच इज अवेलेबल? 6.2। ओके ओके, 6.2 है, करेक्ट। 7.0 का बीटा वर्जन आ गया है वेर यू कैन हैव एन एक्सपीरियंस। अभी तक वो लाइव नहीं हुआ है बट बीटा इज देयर। ठीक है, मैं उसका एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे देती हूँ। सी दिस इज माय बीटा, मैं ओपन कर लेती हूँ। दिस इज नॉट 7.0, हाँ दिस इज 7.0, यस। ठीक है, अब स्क्रीन देख के आप ही लोग बताइए क्या नया है। सी, जस्ट ऑब्जर्व द स्क्रीन एंड टेल मी व्हाट इज न्यू। चेक हाउ योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर। क्या नया है, स्क्रीन को ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से। आपके टैली के स्क्रीन को भी ऑब्जर्व कीजिए और ये वाली टैली की स्क्रीन को भी ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट इज न्यू? हम्म, ऑल्ट F, करेक्ट। ओके, नहीं, दिस थिंग इज अ दिस थिंग कस्टमाइज्ड थिंग। लेट मी जस्ट, एक मिनट, TDL बंद कर देती हूँ। अब बताइए। सी, नहीं, एमटेक BAP रिपोर्ट जा रहा है कस्टमाइज्ड रिपोर्ट, कॉलमनर TB हमारा कस्टमाइज्ड रिपोर्ट है सर। मैंने वो डिसेबल कर दिया है, जो भी एडिशनल था कस्टमाइज वो अभी डिसेबल कर दिया है। अब जो आपको दिख रहा है दिस इज डिफॉल्ट। इसमें क्या नया है? वन थिंग आई गॉट फ्रॉम फरद सर, दैट इज ऑल्ट F। किसी ने देखा ऑल्ट F ऊपर? क्या देगा ये ऑल्ट F आपको? चैट में समथिंग इज देयर।
फाइन ट्रू, फाइंड है करेक्ट. सी व्हाट फाइंड हैज गिवन यू इज, यहीं पे ना आप डायरेक्ट सर्च कीजिए लेजर अमाउंट. आप डायरेक्टली लेजर का अमाउंट, लेजर का नाम, लेजर के अंदर का जीएसटी नंबर सर्च कीजिए एंड यू विल गेट द थिंग्स ओवर हियर. मैं कोई एक लेजर ले लेती हूँ विच कंटेन्स, एक सेकेंड ना, और यहाँ पे अमाउंट की जगह पे हम ले लेते हैं लेजर नेम. लेजर नेम समझ लीजिए हमने जॉब वर्क की कोई लेजर बनाई है. एक मिनट, लेजर नेम जॉब वर्क. हाँ ये रहा जॉब वर्क पार्टी लेजर है हमारे पास. यहाँ पे जाइए, लेजर सर्च कीजिए एंड टैब्स नहीं, जॉब वर्क मिला. मास्टर में लेजर है वो भी मिल जाएगा, उसके अगर कोई ट्रांजैक्शंस है तो वो भी मिल जाएंगे. इन केस इफ यू हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक, डू नॉट वरी, इंक्लूड सिमिलर स्पेलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है. F9 प्रेस कीजिए, सिमिलर स्पेलिंग से उससे रिलेटेड जितनी भी आपके लेजर्स होंगी वो भी आपको यहीं पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी. कंट्रोल बी कीजिए, इंक्लूड सिमिलर स्पेलिंग्स को यस कीजिए, इंक्लूड कंटेन्स मैच को यस कर दीजिए, तो उससे मैचिंग जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि ये मैच कौन सी चीज में आया, वो वेदर इट वाज इनटू नेम, वेदर इट वाज इनटू अमाउंट, व्हाटएवर द थिंग वाज. वेरी यूजफुल, इट इज रियली वेरी यूजफुल. आप स्टॉक आइटम की जब बात करेंगे या जब अमाउंट की बात करेंगे, ये है ना इतना अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि इफ यू आर हैविंग 3-4 कंपनीज एट योर प्लेस, लाइक आपने टैली डेटा जो मेंटेन किया है वो 3-4 कंपनीज में है, एंड इफ यू आर हैविंग एक्सेस टू ओनली वन ऑफ देम, मान लीजिए पलक 1, पलक 2, पलक 3 एंड पलक 4, 4 कंपनीज आर क्रिएटेड, बट आई हैव एक्सेस टू ओनली पलक 2 एंड 3. और अगर आई एम ट्राइंग टू ओपन फाइंड रिपोर्ट फॉर पलक 3 एंड पलक 4, तो नहीं मिलेगा मुझे इफ आई एम नॉट हैविंग द एक्सेस टू दैट. अगर 1 एंड 2 के लिए एक्सेस है तो 1 एंड 2 का ही मिलेगा मुझे रिपोर्ट्स. वो इतनी अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है एंड यूजर लेवल पे आप इसको डिसेबल एंड एनेबल भी कर सकते हैं. ये पूरा इन डिटेल ट्रेनिंग हम स्केड्यूल करने ही वाले हैं. ओके, आई विल रिपीट, नो वरीज, आई विल रिपीट. Where can we get the recorded version of this webinar? It will be on YouTube, madam, if I am getting the permission. We'll check out. If I'm permitted, surely it will be on YouTube. We have our channel with the name AimTech Business Solutions. I'll just drop down the name into chat. This is our company name, जहाँ पे you will be getting this videos. हमारे previous webinars भी इस पे uploaded है. You can go and check out if you have missed anything out of that. ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है. You can have a search on this. हाँ, जानवी मैडम ने मुझे ये रिपीट करने के लिए बोला है. मैडम यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने 4 कंपनीज है, 4 में से 2 कंपनीज का ही आपको एक्सेस है, या यू वांट कि पर्टिकुलर यूजर को कोई एक डेटा एक्सेस ब्लॉक किया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि वहां पे वो फाइंड का ऑप्शन ना एनेबल कर सके, लाइक व्हेन ही इज फाइंडिंग समथिंग तो उस कंपनी का रिपोर्ट उसको ना मिले, तो दैट थिंग ऑल्सो कैन बी कॉन्फिगर्ड. यू कैन ब्लॉक द एक्सेस ऑफ फाइंड एज वेल. इसको एनेबल या डिसेबल करना आपके यूजर रोल में डिफाइन कर सकते हो आप. जो आपके यूजर है उनके रोल्स जब हम क्रिएट करते हैं, डेटा एंट्री है, tally.net यूजर है, ओनर है, वहीं पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इफ यू विश कि दिस पर्सन शुड नॉट हैव एन एक्सेस टू दिस थिंग. ठीक है, बट एनेबल कैसे किया वो बताइए. वो मैडम मैंने अभी शेयर नहीं किया है यहाँ पे, वो हम इन डिटेल जो नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं उसमें हम कॉन्फ़िगर करके बताएंगे. नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन 7.0 ओनली, and also we'll have some another topic with that. 2 or 3 topics will be considered in that also. तो उसमें हम ये इन डिटेल देखने वाले हैं प्रोसीजर. अभी हमने सिर्फ आपको जो फीचर इसमें दिया हुआ है फाइंड रिजल्ट का, वो फीचर बताया है. वन फीचर इज फाइंड रिजल्ट. नॉट ओनली दिस वन फीचर, इससे भी अच्छा एक एक्सीलेंट फीचर आई एम showing you over here, which is related to backup. You can now schedule your backup. You can now schedule your backup when you want a backup at your place. In case of TDS, we can directly file TDS return from Tally. No, you can save the return and export it out, and then you will have to put it on the portal.
मतलब आपको वो फाइल मिल जाएगी यहाँ से एक्सपोर्ट करके, बट फाइल आपको वहीं पे करना है, पोर्टल पे करना है। रिटर्न पूरा रेडी होके मिल जाएगा, उसे आप सेव करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट फाइलिंग आपको वहीं से करना होगा। टीडीएस का फाइलिंग अभी इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सी, जैसे मैंने आपको बताया यू कैन नाउ स्केड्यूल अ बैकअप। अगर आपको 7.0 अपने यहाँ पे एक्सेस करना है ना, तो यू विल ड्रॉप डाउन 7.0 इन द चैट। जितने लोग 7.0 लिख रहे हैं, आर टीम इज गोइंग टू गेट बैक टू देम एंड इम्प्लीमेंट लाइक डाउनलोड द इंस्टॉल द 7.0 बीटा एट योर प्लेस, एंड देन यू विल हैव अ चेक ऑन दीज फीचर्स, ठीक है। पहले स्केड्यूल बैकअप देख लीजिए, फिर तो आई डू नॉट थिंक कि पीपल अपने आप को रोक पाएंगे 7.0 लिखने से। बैकअप का फीचर एक्सीलेंट फीचर है इसके अंदर। हियर व्हेन यू क्लिक ऑन ऑल्ट वाई, तो आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर यू गेट स्केड्यूल बैकअप का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कीजिए और जितने भी बैकअप्स आपने स्केड्यूल किए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इफ यू विश टू हैव एन इमीडिएट बैकअप, प्रेस F6, इमीडिएट बैकअप हो जाएगा। सी ओवर हियर, बैकअप नाउ F6 है। यू कैन ऑल्सो रिफ्रेश द डिटेल्स जो आपने लगाई हुई है, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आप रिफ्रेश कर सकते हैं F12 करके। कंपनी का डेटा पाथ अगर आप देखना चाहते हैं, स्केड्यूल डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं, यस करके कंट्रोल ए कीजिए। यू कैन सी स्केड्यूल कैसे हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है। डेली बेसिस पे 4 PM पे एक बैकअप होता है इस कंपनी का। कहाँ पे होता है, एट डी ड्राइव। बैकअप पाथ जो हमने दिया हुआ है, और ये कंपनी का डेटा पाथ क्या है, दिस इज द कंपनीज डेटा पाथ, सी ड्राइव यूजर्स एडमिन। डेट बैकअप हुआ है या नहीं उसका स्टेटस यहाँ पे मिल जाएगा। इफ इट इज फेल्ड, you can take a backup immediately. You can find out the reason for what is the reason for failure. Okay, कंट्रोल बी कीजिए, एक्टिव स्केड्यूल्स देख सकते हो, पॉज किए हुए स्केड्यूल देख सकते हो, कंप्लीटेड स्केड्यूल्स देख सकते हो, सारे स्केड्यूल्स देख सकते हो, ठीक है। लास्ट बैकअप का स्टेटस अगर आपको देखना है, सिर्फ फेल वाला कितना है, ऑन होल्ड कितना है, येट टू स्टार्ट कितना है, यू हैव द ऑप्शन टू चेक आउट द रिपोर्ट लाइक दैट। फ्रीक्वेंसी कैसी है, वंस है, डेली है, वीकली है, विच एवर यू विश टू चेक, यू कैन हैव अ चेक ऑन, ठीक है। यहाँ से आप स्केड्यूल कर सकते हो। हाउ डू यू एड अ स्केड्यूल, इट इज बाय ऑल्ट ए। ऑल्ट ए कीजिए। इफ यू विश टू टेक अ बैकअप एट टैली ड्राइव, तो टैली ड्राइव रखिए। इफ यू विश इट शुड हैपन ऑन योर लोकल ड्राइव, तो लोकल रखिए। डी जाके सिलेक्ट कर लीजिए, पाथ दीजिए, whichever company you wish to take backup of, select the company you want the backup, daily, weekly, monthly, once, select it out, give the timings, कौन से टाइम पे बैकअप चाहिए। I want 6 पे एक बैकअप हो जाए, AM PM you need to describe whether it is 6 PM. Take a backup now if you wish to, yes. If you do not wish to, press no. Schedule हो गया यहाँ पे। If you wish to delete a schedule, you can select it, press Alt D and it will be deleted. आप एंटर करके उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दिस वे यू विल गेट कि बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली इनटू दिस ड्राइव। बैकअप का साइज कितना है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सी फंक्शनैलिटीज है, जीएसटी को लेकर के अपडेट्स है, आईएमएस को लेकर के अपडेट्स है इनटू 7.0। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो डीपली 7.0 पे ही होगा, जहां पे हम ये सारे फंक्शंस को भी प्रॉपरली एक्सेस करके इन डिटेल आपको रिपोर्ट्स दिखाने वाले हैं। सेकेंडली, जीएसटी और आईएमएस पे जो इफेक्ट्स आया है 7.0 की वजह से, वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग ऑन इट। Make sure that next webinar you are not going to miss. Can I back up directly in cloud on drive? Yes, you can. What is tally drive? Tally drive is ki tally ke drive pe backup. Local drive is your this thing, your PC's drive. Tally drive is tally's drive. ठीक है, when you add a schedule, see here, cloud storage पे हो रहा है वो, ठीक है। So फाइंड की हमने बात की, बैकअप की हमने बात की, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो 7.0 में आए हैं उसका एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है। दोज हु विश कि 7.0 का बीटा वहां पे भी इंस्टॉल हुआ एंड यू कुड आल्सो हैव एन एक्सेस टू दीज फीचर्स, ड्रॉप डाउन 7.0 in the chat. We all our team is going to get back to you all and give away the things which we have discussed today. TDS reports के लिए हमने email IDs नोट किए हुए हैं। Secondly, for the free dashboard which we are providing, we have taken the me का consent. जितने भी मीज हमें मिले हैं, we are going to get back to you with the dashboard. आपको मेल के थ्रू या फिर थ्रू व्हाट्सएप, some or the other way it is going to be shared
एंड 7.0 वालों को आपको कॉल्स आ जाएंगे हमारी सपोर्ट टीम से, wherein you can ask them to install the 7.0 beta at your place and you can have an experience to such wonderful features. अब to have a close to the session, मैं एमटेक के सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. एमटेक के सपोर्ट नंबर्स हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. 1504711. टैली रिलेटेड कोई भी सपोर्ट्स अगर आपको रिक्वायरमेंट है, वी डू कस्टमाइजेशन इनटू टैली. We have cloud, AWS cloud. If you wish to shift on cloud, we provide cloud services. We provide VPN services. We provide Windows cloud services. We also do TSS for you all, and we provide supports into Tally. इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स अगर आपको चाहिए, Tally from scratch. If you want to know anything, if you want to purchase a license, if you want to convert your single user into multi-user or anything, it is from A to Z, anything into Tally, get back to us on the support numbers which I'm providing you. Just mention कि हमने webinar attend किया था. We are from there. We are communicating from the webinar, and you will be provided the support. Here are the numbers: 92328623. Correct. मैंने एमटेक सपोर्ट नंबर्स ड्रॉप कर लिया है. सेव इट आउट इनटू योर थिंग, योर व्हाट्सएप, योर फोन. Any change in 7.0 with regards to import of bank statement? Not really for bank statement, but for e-payment, yes. You have got a major update into e-payments. Now you can, have the e-payments from Tally. Like here you can see alt side में send payment advice जो आप भेजते हैं ना, here सेंड पेमेंट के ऑप्शंस आपको मिल गए हैं. एंड पेमेंट एडवाइस, बेसिकली ई पेमेंट का जो पेमेंट एडवाइस है, दैट कैन बी नाउ जनरेटेड फ्रॉम Tally. वी आर गोइंग टू हैव अ नेक्स्ट सेशन ऑन दिस थिंग ओनली, एंड इट वुड बी अ डीप सेशन जहां पे हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीजों की शेयर करने वाले हैं. सो आई हैव गॉट सम 7.0s ऑल्सो. मी तो बहुत सारे मिले हैं मुझे, एंड ईमेल्स भी मुझे मिले हैं. वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू ऑल ऑन दिस थिंग. Is any session on GST, मैडम? नेक्स्ट सेशन में आइए. नेक्स्ट सेशन में जीएसटी को लेकर के जो 7.0 में अपडेट्स आई है वो हम शेयर करेंगे. और अगर आपको जीएसटी रिकंसिलिएशन या वो सारी फैसिलिटीज को जानना है कि मतलब रिको कैसे करते हैं टैली में, फाइलिंग कैसे होता है टैली से, तो उस पर हमारा एक डीप इन डिटेल्ड सेशन हो चुका है ऑलरेडी. उसका रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा. इन केस इफ यू आर मिसिंग ऑन दैट, अगर आपको नहीं मिल रहा है वहां पे, तो गेट बैक टू अस ऑन द सपोर्ट नंबर्स. आपको प्रोवाइड कर देंगे मैडम. ठीक है, सपोर्ट नंबर्स पे कॉल करके बोल दीजिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. बैंकिंग के रिलेटेड भी जो 6.1 में 6.2 में जो अपडेट्स थे, उस पे इन डिटेल सेशन, और जो जीएसटी रेट अपडेट हुआ था 22 सितंबर को, उस पे भी एक प्रॉपर सेशन हो करके हमारे यूट्यूब पे डाला हुआ है. यू कैन जस्ट हैव अ चेक ऑन द चैनल. ठीक है, नाउ टू हैव अ क्लोज टू दिस सेशन, let me just check out if I'm missing on anything. Yes, okay. ठीक है, we are done with all the things over here. Thanks ma'am, it was an amazing session. Thank you so much, that means a lot. Thanks Janvi ma'am, thanks Jaya Lakshmi ma'am, thanks a lot. Yes, so coming back to our Zoom screen. हाँ, अभी सारे थैंक्स मैं Zoom की स्क्रीन पे आके पढ़ लेती हूँ. Yeah. So please arrange payroll class, ma'am. Sure. We'll have a track on this. Payroll के लिए भी we'll have a working. हम customization related workings भी करते हैं, तो उसी के साथ I'll try to manage payroll with that. We'll have a proper session on that. No worries. Yes. So आप लोगों को सेशन कैसा लगा है वो आपको चैट पे तो ड्रॉप करना ही है, बट इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि इफ यू फील कि जो हमने एफर्ट्स दिए हैं, जो आपने एफर्ट्स दिए हैं, जो आपने अपना टाइम दिया है, आपको लगा कि इट इज वैल्यूएबल, प्लीज गो टू गूगल, सर्च एमटेक. वहां पे आपको रिव्यू का पेज मिलता है. ड्रॉप डाउन द रिव्यूज, विल बी वेरी हैप्पी सीइंग द रिव्यूज ओवर देयर. एमटेक बिजनेस सॉल्यूशंस, वी हैव आवर गूगल पेज. Please go to the Google page and drop a single review from your side onto the session, or on anything, any part which you liked into the session and you are going to implement at your place. So with this, thank you all for joining us today.
for the powerful session, T Square Power Session, turbocharge your tally with TDS and shortcuts. We hope the walkthrough on TDS setup and reports, the productivity boosting shortcuts, and the insights into what's new in Tally Prime 7.0 have given you valuable takeaways to enhance your day-to-day work. Your participation and engagement truly made the session meaningful. If you have any further questions or need any further support, feel free to reach out to AIMTech Business Solutions team. We are always happy to help. Once again, thank you for being with us. Wishing you a productive and successful journey with Tally. Have a great day ahead. Thank you so much for your time. Thanks a lot. Bye, madam. Thank you so much. That was my pleasure. Thank you so much. Thanks to all. Thanks to all.